uh, uh, once again, a very warm welcome to UXL training platform, where we'll be providing you an orientation of advanced MS Excel training with new updates of 2024. For example, now in our training, we have added Copilot, which is one of the latest features. Obviously, it's been there in Advanced Excel for about a year now, but we have made some changes into the outline so that now we start training you on how to use Copilot effectively so that you can easily analyze the data, easily work through data. So what is really Copilot? How it can make your life easier while using Advanced Excel? These are all the different things that we'll be covering into this orientation as to how Copilot can really facilitate you. We have still a couple of more minutes before we officially begin our orientation. Let us take a quick introduction from all the participants until the time comes at around 11:30 when we'll be starting our orientation. So let us start from Ahsan Jamal. Ahsan Jamal, can you please introduce yourself? Assalamu alaikum. One Salam. My name is Ahsan Jamal, and Ji. I'm a mechanical engineer having a 9-year experience. And what brought you to Advanced Excel orientation? Like, what was your objective? I want to first S path, S curve because of the budgeting and working, manpower handling. That's why I want to seeking advanced MS Excel. Okay, all right, that's great. Once again, a very warm welcome. Video Nazar. Thank you. Thank you. And we have here Engineer Ali Baksh as well. Engineer Ali Baksh, can you please introduce yourself? Engineer Ali Baksh, can you please introduce yourself? Okay, sir, I have throat problem, so I can't talk with you. No problem. Engineer Ali Baksh, can you please write your introduction into your chat box and we'll read it out through that. Thank you so much once again. And we have here Hassan Iftikhar. Hassan Iftikhar, can you please introduce yourself? Yes, thank you. Thank you. My name is Hassan and I'm a HR professional. Okay. I want to learn advanced Excel because of compensation related things like budgeting, salaries, working, and different HR data. Okay, all right, that's great. Thank you so much, Hassan, for confirming your introduction. And let's move on to Mirza Mehdi Beg. Mirza Mehdi Beg, please can you introduce yourself? Assalamu alaikum. I have about 10 years of pharmaceutical experience in diversified roles. And the objective of coming to this course is learn more about analysis and dashboards so that I can make more innovative innovation in my work and in my workplace sanity. Thank you. Excellent. That's great, Mirza Mehdi Beg. It is so nice to hear your introduction. And once again, a very warm welcome. Okay. Thank you so much. Welcome. Assalamu alaikum ji. Assalamu alaikum. Thank you. We have here Tasneem Maskawala. Tasneem Maskawala, can you please introduce yourself? Ji Tasneem, can you please introduce yourself? Okay, no problem. If there's any mic issue at your end, then you can write your introduction into the chat box and we'll go through the introduction itself. The introduction really helps us to know the participant's background and helps us integrate easily. And most importantly, we can then help you build more clarity. Once we know your backgrounds, we give you the examples, we give you the illustrations of all those things which are relevant to your profile. So from this wonderful introduction of all the participants, we now have some participants from physical audience as well, because this training is provided on hybrid basis, where we provide training on online to the online participants as well,
and we also provide training to the physical audience. So we have here physical participants here in our institute in our based in Karachi. So let's get to know the introduction from our physical audience. जी, आपका नाम? मोहम्मद हमदान, रमजान, मोहम्मद रमजान जी। बेसिकली यहाँ स्किल्स को बढ़ाने के लिए आने वाले दौर में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसमें बड़े साबित हो सकते हैं। ओके, ऑलराइट। अभी आप पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं? मैं पढ़ रहा हूँ और Okay. पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू जी। प्रोफेशनल बैंक पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड बैंक ओके, एमबीए मार्केटिंग एडवांस सेक्शन इसमें बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। हर जगह ट्रांसफर में वहाँ एक्सेस पूछा जाता है स्पेशली। तो दैट वाज अ मेन रीजन क्योंकि मैंने आपसे तकरीबन जब मैंने लैपटॉप किया था 20 साल पहले, जब मैंने ये एक्सेस वगैरह आने सब कुछ किया, तो बेसिक नो हाउ है, लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है और बहुत ज़्यादा कहते हैं लाइफ फॉर्मूले में, हाँ, दैट्स व्हाई मैंने यूज करता हूं। तो मैक्सी में भी फिर आपका पावर भी है, Power BI. उसको भी मैं बाद में करती हूँ। all right, that's great. We have participant, one of the participants is a student and is doing a part-time job, and we have another candidate here who is in our orientation, who is belonging from one of the leading banks here in Pakistan and globally as well. And obviously market जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, industry में काम जो Excel का बढ़ रहा है, तो obviously the participant is really keen to learn the new techniques of Excel so that he can work on the visualization, analyze the data, and make meaningful story out of everything that he does. We have another physical participant here. Let's get to know about his background. Ji. Hasnan Yusuf. Ji. जी जी जी, दैट्स वाई। ओके, हमारे पास एक और भी बैंकर हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है हमारी ओरिएंटेशन में। और बैंक्स में ऑब्वियसली, बैंक्स में कहा जाए, फार्मास्यूटिकल में बेसिकली देखें, इंडस्ट्री वाइज तो एक्सेल का है, लेकिन आप बड़े ट्रेंड को देखें। बड़ा ट्रेंड ये है कि ऑन द लार्जर स्केल, ऑन द स्ट्रेटेजिक लेवल, एवरीवेयर देयर इज लॉट ऑफ डेटा। अब उस डेटा को मीनिंगफुल स्टोरी में कन्वर्ट करना है और उसमें एक्सेल की जरूरत पड़ जाती है। अब चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो अगर रोल वाइज आ जाए तो एचआर हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, अल्टीमेटली इट्स द डेटा विच वी वांट टू यूज इट एंड कैपिटलाइज अपॉन इट। So the time has now come where we start our orientation। और भी हमारे पास पार्टनर्स ऑब्वियसली ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, फिजिकल भी हमारे पास और पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं। बट इस तरीके से अगर हम इंट्रोडक्शन में थ्रू आउट रहे तो फिर हमारा जो एक्चुअल ओरिएंटेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा किसी न किसी हद तक। तो लेकिन ये कि अभी तक अच्छा इंट्रोडक्शन मिला सबका। एंड वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, एंड लेट्स get to know more about how advanced Excel can make your life easy and can help you build robust and excellent IT skills, ताकि कल को आप जो है वो एक कॉन्फिडेंट यूजर बन सकें एक्सेल के। दैट इज व्हाट रियली आवर गोल इज, कि कल को आप जब एक्सेल यूज कर रहे हो तो आपके पास हर किस्म की अप्रोच हो। बिकॉज काम करने में भी बहुत सारी अप्रोचेज होती हैं, लेकिन हम ट्रेनिंग में वो वाली अप्रोच आपको कवर कराते जो आपका कम टाइम ले और आपको इफेक्टिव आउटपुट दे दे। मिसाल के तौर पे जो एक्सेल के यूजर्स होंगे, एक हमारा बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला चलता है। लेट्स से मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले देता हूं और उसके बाद ओरिएंटेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। कि हमारे पास एक चलता है कि सर वी लुकअप। अब वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा इन है। और इंटरव्यू में, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिसिपेंट है, वो ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू का तो ये पहला सवाल है कि जी जो है ना, वी लुकअप आपके पास आता है आपको या नहीं आता। और अगर वी लुकअप नहीं आता तो मतलब ये है कि आपको एक्सेल में थोड़ा से इश्यूज हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला कवर कराएंगे वो वी लुकअप से ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है, और वो आपको वी लुकअप की कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन हम आपको ट्रेनिंग में वो फॉर्मूला कवर कराएंगे जो कि वी लुकअप वाला काम भी करेगा और वी लुकअप की जो लिमिटेशन है उसको भी कवर करेगा। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल है, और ऐसे पता नहीं कितने और एग्जांपल्स होंगे, लेकिन ये एक छोटा सा एग्जांपल है क्योंकि फॉर्मूला पॉपुलर वी लुकअप बहुत है। आपके पास इंटरव्यू में अगर पूछेगा कोई
कि मिस्टर सो एंड सो या मिस सो एंड सो, do you know about VLOOKUP and how do we use, what's the formula of VLOOKUP? So you will start telling now let's say you're performing in an interview, you will be giving an answer कि sir ये VLOOKUP का इस तरीके से formula होता है, syntax, and then you take the whole range and all. But most importantly, sir, I have taken the training and VLOOKUP has certain limitations. We can actually apply index match as well. Index match is a great formula which works according to the VLOOKUP criteria as well, and it does more as well. Now this is getting, let's say अगर आपके आंसर में आपको VLOOKUP का जवाब आ रहा होता तो आपको 8 out of 10 मिलते, लेकिन आपने इंडेक्स मैच का बताया तो आपको 10 out of 10 मिल गया। क्यों? क्योंकि आप VLOOKUP से नेक्स्ट लेवल वाला भी फॉर्मूला उनको बता रहे हैं, एंड दैट कम्स थ्रू ट्रेनिंग। वैसे आपको शायद अब एक सिचुएशन तो ये है कि VLOOKUP पता ही नहीं है, एक सिचुएशन ये है कि VLOOKUP पता है, तीसरी सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा हूं वो और भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि अब आप ट्रेनिंग ले चुके हैं कि VLOOKUP आता है और इसके साथ साथ ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी आता है कि अगर VLOOKUP ना चल पाए तो मैं इंडेक्स में चला लूंगा। तो ये सारे फायदे जो है आपको ट्रेनिंग से होते हैं, व्हेन इट स्टार्ट्स ओपनिंग योर पर्सपेक्टिव। तो जो है वो अब हम ऑफिशियली, हमारे पास और भी फिजिकल, आप थोड़े से और आगे आ जाए। दीजिएगा। ऑलराइट, ठीक है। All right, so just wanted to quickly confirm from our online audience के screen आपको सबको visible है before we commence our demo? Screen visible है आप सबको? Yes, sir. Okay, and obviously voice भी audible है, तभी आपने जवाब दिया। Okay, fine. So, all right. So once again, a very warm welcome to all the participants at Advanced MS Excel Training Orientation. And my name is Farhan Shahid Qazi, and I'll be here leading this demo. Along with me will be Uzair Rashid, who is the lead effective trainer of this training program, जो कि आपको complete orientation provide करेंगे training outline की. Let us go through the agenda of today's session. First of all, we'll be discussing about क्लास ऑफ अ प्रोफेशनल MS Excel यूज, बिकॉज एक यूज होता है जिसमें हम प्रॉपरली नहीं सीखा और किसी दोस्त से पूछ लिया, थोड़ी यूट्यूब देख ली, थोड़ा बहुत अपना ही दिमाग लगा के हमने सीख लिया। लेकिन here we will be covering how to use the professional use of MS Excel, ताकि आप in control हो of whatever you are doing। फिर हम जो है वो why learn MS Excel उसको भी कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम salient features of MS Excel इसको भी कवर करेंगे। Then we will be discussing कि सर ये ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, when the training completes, what will be the outcome that I will receive? What will be the learning outcome? We will be covering that as well, so that we are absolutely clear। जी हमारे पास यहाँ पे आ जाए, यहाँ इस जगह पे, यहाँ पे। इसके साथ साथ हम जो है वो प्रोग्राम आउटलाइन को भी डिस्कस करेंगे सब मॉड्यूल वाइज। फर्दर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हमारे डैशबोर्ड्स में हुई हैं, उनको भी कवर करेंगे। इसके साथ साथ हमने एक नया फीचर इस ट्रेनिंग में इंक्लूड किया, विच इज को-पायलट। को-पायलट इज वेयर यू स्टार्ट इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद MS Excel। लेट्स से आपको अगर एक डेटा है उसमें एक डैशबोर्ड बनाना है, तो नॉर्मली आपको वो इंसर्ट में जाके चार्ट सिलेक्ट करके या कोई आपको स्लाइसर्स वगैरह आपको वर्किंग, वैसे इट्स कॉल इट अ चैट GPT वर्जन ऑफ एक्सेल।
where you will be actually typing in I want to visualize, make a chart out of it, make a dashboard, and Excel will make a dashboard for you from the data. So how that automatically it will work, that will be covering into the training. कि Copilot की integration ज़ाहिर है ये ऐसे नहीं है कि बस आपने enter कर दिया question और जो है वो उसने बना के दे दिया. There are certain tools and techniques that you have to apply. That will be covering into this training. अच्छा, इसके साथ साथ हम further live practical exposure and experiences जो है वो share करेंगे. मिसाल के तौर पे हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स यूज करेंगे ट्रेनिंग में, केस स्टडीज यूज करेंगे जो कि आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड हो. क्योंकि ट्रेनिंग का फायदा क्या कि हम सिर्फ आपको फॉर्मूला कवर कराएं लेकिन उस फॉर्मूला की एप्लीकेशन ना कवर कराएं. तो हम जो है वो रियल लाइफ केस स्टडीज लेंगे और उन रियल लाइफ केस स्टडीज के ऊपर फॉर्मूला की एप्लीकेशन आपको कवर कराएंगे. लेट्स से आपको अगर एक बिल्कुल मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जो कि शायद आपने इमेजिन ना किया हो. लेट्स से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है. अब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में उनको एक मार्कशीट बनानी है और वो मार्कशीट ऑटोमेटेड होनी चाहिए कि स्टूडेंट का नंबर आईडी ऐड न करें और वो मार्कशीट पूरी उसकी आ जाए और उसकी परफॉर्मेंस भी आ जाए एक ही उसमें. एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं. तो आपका वो क्या क्या फॉर्मूलाज लगेंगे. इसी तरीके से अगर आपको सेल्स की एनालिसिस करनी है तो उसमें सेल्स के डैशबोर्ड्स या सेल्स की जो है वो एग्जांपल्स हम यूज कर रहे होंगे. फॉर इंस्टेंस अगर हमें एक पूरी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करनी है बैंकिंग से रिलेटेड, अगर एग्जांपल लेना है हमें, तो उसमें हम बैंकिंग के एग्जांपल्स कुछ केस स्टडी के लेंगे. एंड इसके साथ साथ हम आपको भी इंकरेज करेंगे कि आपके पास अगर जो डेटा है उसको आप थोड़ा सा चेंज कर लें, क्योंकि वो हो सकता है कॉन्फिडेंशियल डेटा हो आपकी कंपनी का, तो उसकी नंबर्स को ट्वीक करके आप वो डेटा शेयर कर दें. हम उसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिकल फॉर्मूला की एप्लीकेशंस कवर कराएंगे ताकि आपको ट्रेनिंग आपके हिसाब से रेलेवेंट लगे. The main thing is that it should be relevant to what you are really studying, right? अच्छा, इसके साथ साथ हम इमर्जिंग करियर पाथ्स को भी डिस्कस करेंगे कि वंस यू कंप्लीट एडवांस एमएस एक्सेल ट्रेनिंग तो क्या क्या करियर पाथ्स हैं जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं. वैसे तो एडवांस एक्सेल इज लाइक यू कैन ओनली इमेजिन कि क्या क्या करियर पाथ्स होते हैं बिकॉज इट्स बीइंग यूज्ड एवरीवेयर. बट हम उसको एक दफा फिर से भी कवर करेंगे. देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द यूएक्सेल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म. जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं ये कहाँ से रजिस्टर्ड है, कहाँ से सर्टिफिकेट इशू होगा, क्या ये रिकॉग्नाइज्ड है प्लेटफॉर्म या क्या ये रिकॉग्नाइज नहीं है. तो ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे. फिर इसके साथ साथ हमारे जो लीड इफेक्टिव स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर हैं, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर्स का भी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनकी क्या प्रोफाइल है, क्या उनका बैकग्राउंड है, ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिल सके. हमारा इस ओरिएंटेशन का बुनियादी मकसद ये है कि जब आप एडमिशन ले रहे हैं एडवांस सेमेस्टर में तो ट्रांसपेरेंटली आपको हर चीज डिक्लेयर करके और आपको इन्फॉर्म करके दी जाए ताकि आप जो भी डिसीजन लें इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें. ये हमारा बुनियादी मकसद है और इसीलिए हमने आपको आज यहाँ पे इन्वाइट भी किया है फॉर दिस टाइम. आइए अब जानते हैं ग्लांस ऑफ प्रोफेशनल एमएस एक्सेल यूज के बारे में. सबसे पहले तो एक्सेल हैज ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट. आप अगर देखेंगे 2007 की या 2003 की जो एक्सेल वर्जन है और जो आज 2019 में 2019 अब तो इवन एमएस ऑफिस 365 आ गई है. तो 365 को और आप पिछली जो एरा 8-10 साल के एक्सेल को कवर करें, आज भी एक्सेल बहुत ज्यादा रेलेवेंट है. और अब रिसेंटली मिसाल के तौर पे एक्सेल ने इवन पाइथन को भी इंटीग्रेट कर लिया है अपने साथ. तो दैट मीन्स के एवरी टाइम एक्सेल इज अपडेटिंग इटसेल्फ, विच मीन्स के हमें भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा. क्योंकि एक्सेल अगर अपडेट हो रही है, टूल अपडेट हो रहा है और हम अगर नहीं अपने आप को अपडेट कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर फॉलोइंग बिहाइंड. सो वी नीड टू गेट अप टू द स्पीड what Excel is. इसके साथ साथ Excel ने बहुत ही बेहतरीन कुछ BI टूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं. तो बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स को हम कवर करेंगे. उसमें हम कैसे डैशबोर्ड बना सकते हैं, पावर क्वेरी और पावर पिवट को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी डेटा क्लीनिंग में. बिकॉज एक प्रोसेस होता है, आई एम प्रीटी श्योर आप में से कितने ऑलरेडी एक्सेल वैसे यूज कर रहे हैं बाय द वे, मतलब लिटरली यू आर यूजिंग एक्सेल इन सम शेप और फॉर्म. ऑलराइट, ऑनलाइन ऑडियंस में कितने हैं जो यूज कर रहे हैं ऑलरेडी एक्सेल in some shape or raise your hand. कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी एक्सेल को यूज कर रहे हैं इन सम शेप और फॉर्म. ओके, हमारे पास अभी तक 1-2 ही आए हैं, 3-4. ओके March. Okay, so I can say nearly about 40% participants, 40 to 50%, even more than that वो ऑलरेडी एक्सेल को यूज कर रहे हैं. लेकिन
आप में से कितने हैं जो कि ऑलरेडी पावर क्वेरी के फीचर को यूज कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, पिवट टेबल्स को कितने यूज कर रहे हैं? आप यूज कर रहे हैं, ओके। लेकिन कितने हैं जो कि पावर पिवट को यूज कर रहे हैं? सो दीज आर द डिफरेंसेस कि जब प्रोफेशनल यूज एमएस एक्सेल का आ जाता है तो हम जो है वो ऑलरेडी जो चीजें हमें आ रही हैं उनमें भी इजाफा होता है। जिसको पिवट टेबल आता है वो पावर पिवट सीख रहा है, जिसको जो है वो पिवट टेबल नहीं आता तो वो पिवट टेबल खुद भी सीख रहा है, और पिवट टेबल सीखने के साथ पावर पिवट भी सीख रहा है। इन चीजों के सीखने का सर फायदा क्या होगा? मतलब मैं टाइम लगा रहा हूं और अल्टीमेटली मतलब व्हाट फॉर, मतलब क्या मेरा काम चल रहा है, मैं खुश हूं? नो। ये तो ओनली यू कैन इमेजिन कि आप जब आपका माइंड खुलेगा तो फिर आपको पता चलेगा कि यार ये सर मैं काम, मेरे पास अभी पार्टिसिपेंट हमारे पास आए, तकरीबन 6 महीने हो गए वो पार्टिसिपेंट बात को। उन्होंने 2 सेशंस अटेंड किए एक्सेल की ट्रेनिंग के, और तीसरे सेशन में शी केम इनटू माय ऑफिस एंड शी लिटरली एडमिटेड, वो रिसर्च एसोसिएट हैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में। शी लिटरली केम एंड सेड कि सर मैं काम तो कर रही थी और मेरा काम चल रहा था, लेकिन ये 2 सेशन सिर्फ मैंने अटेंड किए हैं और उसके बाद मुझे अब ये लग रहा है कि मैं कितनी गलतियां कर रही थी अपने काम में। आई कुड नॉट इवन रियलाइज, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, वो मेरा ब्लाइंड स्पॉट था। आई कुड नॉट इवन नो। ये तो ट्रेनिंग से मुझे पता चला है कि मैं एक्चुअली कितनी काम मेरा फिर भी हो रहा था, लेकिन अब मेरी अप्रोच ठीक हो गई है। So that is where, you know, professional MS Excel का यूज एक आ जाता है। How to pull the data from multiple sources and share it with others. Collaborate in MS Excel. Collaboration में क्या होता है कि आप Excel को यूज कर रहे हैं, सामने वाला भी यूज कर रहा है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं Excel में। ऐसे नहीं है कि मैंने Excel में काम किया फिर मैं WhatsApp से भेज रहा हूं या ईमेल से भेज रहा हूं, फिर वो काम कर रहा है रिपोर्ट में और वापस वो भेज रहा है मुझे। आप कोलैबोरेट करके भी काम कर सकते हैं कि टीम मेंबर एक के काम कर रहा है उसी शीट में, टीम मेंबर बी भी वही शीट खुली हुई है उस पर काम कर रहा है। हाउ डू यू डू दैट? तो ये सारी चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली वंस यू स्टार्ट गेटिंग डीपर इनटू द टेक्निक्स ऑफ एक्सेल देन ओनली योर माइंड, और जो कि हमने यहाँ पे आपको कुछ आगे ट्रेनिंग आउटलाइन में ओरिएंटेशन दी भी है इस चीज की। अच्छा, व्हाई लर्न एमएस एक्सेल? जैसे कि यहाँ पे हमने पार्टिसिपेंट्स का इंट्रोडक्शन लिया, हमें यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि एचआर में एक पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने कहा कि मैं एचआर में ऑलरेडी आई एम वर्किंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है, एनालिसिस है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑपरेशंस को मैनेज करना है। इसके साथ साथ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डेटा को स्ट्रक्चर कैसे करना है, बिकॉज डेटा आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आती है। खास तौर पे बैंक्स में तो ये इतना प्रॉब्लम होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आती है, उसको पहले स्ट्रक्चर करना होता है, फिर स्ट्रक्चर करने के बाद आप आगे अपनी वर्किंग शुरू करते हैं। तो क्या ही ऐसा है कि मैं आपको अगर ऐसा टूल कवर करा दूं एक्सेल में जो कि ये स्ट्रक्चरिंग वाले पार्ट को ऑटोमेट कर दे ताकि आपकी जिंदगी आसान हो। मिसाल के तौर पे एनआईसीज हैं, वो एनआईसी कुछ आपके पास डैश के साथ रिसीव हो रहे हैं 42301-643, और कुछ एनआईसीज ऐसे हैं जो कि बगैर डैश के आ रहे हैं, लेकिन आपको तो एक ही पैटर्न चाहिए कि यार या डैश के साथ आए या बगैर डैश के हो। तो ये आपके पास जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है इसको स्ट्रक्चर करने का एक मैनुअल तरीका होगा जो शायद आप कर रहे हो, एक ऑटोमेटेड तरीका ताकि शीट आए और आप ऑटोमेटिकली उसको विद डैश जो है वो आपके पास स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाए। ये अगेन बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरीके के और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आपको ट्रेनिंग में कवर कराए जाएंगे जिसमें आप अपने काम को ऑटोमेट कर सकें। तो ये हमारे सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनमें एक्सेल यूज हो रही होती है और वहां पे आप एक्सेल को रोबस्टली कवर कर रहे हो। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल। आई एम प्रीटी श्योर कि ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं पता भी होंगी या कहीं ना कहीं यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इट, बट बिकॉज यहाँ पे हमारे पास पार्टिसिपेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए हैं तो लेट अस कम ऑन अ सेम पेज। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको एक दफा मैंने मेंशन कर दिया है ताकि वो पार्टिसिपेंट जो अभी न्यू एंट्रेंट हैं और जो पार्टिसिपेंट जो ऑलरेडी, सबके लिए कुछ ना कुछ नई चीज हो। एक तो ऑब्वियसली स्प्रेडशीट ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाती है, आप जो है वो रोज एंड कॉलम्स में डेटा एंटर करते हैं, फिर आप फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, कुछ हमारे बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं जैसे वी लुकअप हो गया, इफ की कंडीशंस हो गई, इफ एरर की कंडीशन हो गई, कुछ हमारे जो है वो ज्यादा एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज आ जाते हैं जिसमें इंडेक्स मैच, सम प्रोडक्ट, सम इफ्स, और इसके साथ साथ टाइम नाउ, ये और भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जो कि थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो हम सारे फॉर्मूलाज को आपके पास यहाँ पे इस ट्रेनिंग में वो जो आपसे रेलेवेंट हो वो कवर कराएंगे ताकि आप जो है वो अपनी
काम को ऑटोमेट कर सके थ्रू फॉर्मूला मैकेनिज्म। ठीक है, इसके साथ साथ जो है सॉर्ट, फिल्टर, एनालाइज कैसे करते हैं पिवट टेबल्स में, इसको हम कवर करेंगे डिटेल में। फिर हम जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन के कैसे डैशबोर्ड्स बनाए जाते हैं, कैसे स्लाइसर्स डाले जाते हैं डैशबोर्ड्स में, कैसे जो है वो चार्ट बनाया जाता है, कलर थीम कैसे, बिकॉज डैशबोर्ड बनाने का भी एक पूरा एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। आपका आइडियली डैशबोर्ड वो होना चाहिए जो एक ही पेज में नजर आए, आपको स्क्रॉल ना करना पड़े। बाजू का कुछ ऐसे डैशबोर्ड होते हैं जिसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे भी चार्ट बने हुए होंगे। तो हम आपको कोशिश करके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी कवर कराएंगे कि व्हेन यू आर मेकिंग द डैशबोर्ड क्या क्या प्रिंसिपल रूल्स हैं जिनको आपको माइंड में रखना है, ताकि आप उन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस में अडॉप्ट करके उनको अप्लाई करें। एंड डेफिनेटली उनका जो है वो इम्पैक्ट फिर आगे पड़ता है, बिकॉज जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली नोटिस कर लेगा यार ये एक प्रोफेशनल यूजर है एक्सेल का, क्योंकि इसने जो वो चीज बता देती है ऑलरेडी। द वर्क इट सेल्फ स्पीक्स, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, काम खुद बताता है। अच्छा, इसके साथ साथ पावर पिवट का जैसे मैंने जिक्र किया आपसे कि पावर पिवट क्या है इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, पावर क्वेरी क्या है उसको हम कवर करेंगे। हाँ, यहाँ पे ये चीज थोड़ा बताना जरूरी है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बेसिक लेवल का एक्सपोजर होना चाहिए एक्सेल का इस ट्रेनिंग के लिए। अगर आप बिल्कुल ही नाइव हैं कि सर मैंने तो एक्सेल में डबल क्लिक करके भी खोला नहीं है एक्सेल, बिल्कुल मतलब अब खत्म हो गया ना, तो उसके लिए ये वाला, क्योंकि ये ट्रेनिंग इंटरमीडिएट टू एडवांस, बेसिक टू इंटरमीडिएट नहीं है। हाँ, अगर वो फास्ट लर्नर है, सीख जाएगा तो इट्स ओके, गुड, बट हमारा बताना फर्ज है कि यहाँ पे हम वो डबल क्लिक करके एक्सेल खुलती है उस पर इतना टाइम नहीं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ के एटलीस्ट इतना इमेजिन करेंगे कि तो आपको थोड़ी बेसिक ओरिएंटेशन आगे फिर इंशाल्लाह ताला हम आपको लेकर चलेंगे कोई सी चीज। ठीक है, अच्छा, टारगेट ऑडियंस जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे आपने सबने अपने बैकग्राउंड भी बताया माशाल्लाह ऑलरेडी रेलेवेंट थे। यहाँ से सेल्स एंड मार्केटिंग एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, project managers, operations and logistics manager, HR professionals, IT professionals and what not really, but these are the major professions जिनको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है as being the target audience, कि अगर आप इस प्रोफेशन या इस ऑडियंस से आप अगर बिलोंग करते हैं या बैकग्राउंड ये रखते हैं तो दिस ट्रेनिंग बिकम्स रेलेवेंट फॉर यू ऑल। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द लर्निंग आउटकम्स कि सर ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं क्या सीख लूंगा या सीख लूंगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली अगर आप पहली दो अगर आउटकम्स पढ़ लें प्लीज। Tools and functions to format and prepare data in MS Excel. Create data from various sources by using Power Query and Excel. थैंक यू सो मच जी, आप अगर दो रिमेनिंग। Data by highlighting the fields in file tables, use data security functions to protect and pursue the MS file. Okay, that's it. Thank you so much. जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, if you may please kindly read the last two learning outcomes. Last two learning outcomes. जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस जी, थैंक यू सो मच रफी सिद्दीकी फॉर कंट्रीब्यूटिंग। जी लास्ट टू लर्निंग आउटकम्स। ओके, फॉर सम रीजन आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। आर यू स्पीकिंग राइट नाउ? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। जी रफी सिद्दीकी, अब आ रही है मेरी आवाज? जी अब आ रही है, जी अब आ रही है जी। अच्छा, ये है इंट्रोडक्शन टू यूजिंग पाइथन एंड एआई फीचर्स इन एमएस एक्सेल, एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंट एनालिसिस डैशबोर्ड्स विद इम्पैक्ट यूजिंग एमएस एक्सेल। That's great. Thank you so much once again for contributing. So basically इसमें जो भी आउटकम्स हैं उसमें आपको क्लैरिफाई हो रहा है यहाँ पे कि हम जो है वो पहले तो फंक्शंस को कवर करेंगे और उसके उन फंक्शंस, मिसाल के तौर पे जो भी फंक्शंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनको बहुत ही डिटेल में कवर कराएंगे आपको। इसके साथ साथ आपको पता है कि डेटा जो है वो अलग अलग सोर्सेज से आती है। मिसाल के तौर पे अगर HR प्रोफेशनल है, अब डेटा पेरोल की भी आएगी, ठीक है, डेटा अटेंडेंस की भी आएगी अलग टाइम मशीन से। टाइम मशीन से आजकल बायोमेट्रिक से अटेंडेंस होता है, तो बायोमेट्रिक की वो मशीनें वो डेटा देती है कि भाई कितने बायोमेट्रिक के थ्रू वेरीफाइड टाइम इन टाइम आउट हुए, ये एक आपकी मशीन से डेटा आ गई।
एक आपके पास जो है वो डेटा आई कि भाई इस दफा लीव्स कितनी हुई हैं, लीव शेड्यूल, ये एक अलग शीट है जो मैंने मेंटेन हो रही है। फिर एक आपके पास चौथी शीट आई जिसमें आपने कि भाई कितने हैं जो कि इस दफा रिजाइन कर चुके हैं ताकि उनकी फाइनल सेटलमेंट बने, मिसाल के तौर पे कितने हैं जो न्यू कमर्स हैं। नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट विल हैपन इन वन, एक जगह पे नहीं हो रहा होता ये काम। हर कोई डिपार्टमेंट में हर कोई एक एक मैनेजर या उसका असिस्टेंट एक जिम्मेदार होता है, वो उस काम को मैनेज कर रहा होता है। पेरोल का एक अलग जिम्मेदार होगा, लेट्स से। अब अगर छोटी कोई कंपनी है तो उसमें तो शायद कोई एक ही हो जो सारा कर रहा होगा, बट नाउ हियर आई एम टॉकिंग विद यू अबाउट लार्ज एंटरप्राइजेस जहां पे मल्टीपल पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल टास्क। इमेजिन वन पर्सन हैज टू सिट इन and when he has to analyze the data, he has to take the sources from 5 different people. How can we make sure that those 5 sources integrate data from various sources in MS Excel in one sheet automatically? यहां पे इस्तेमाल होता है पावर क्वेरी का, बिकॉज यहां पे डेटा कनेक्शंस बनते हैं, आप कनेक्शन बनाते हैं। अगेन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, you don't need to be an IT background to learn that, but yes, some sort of एक basic IT level की एक knowledge होगी जो कि आपको ज़ाहिर है सीखनी पड़ेगी, और वो इतनी IT लेवल की नॉलेज अब ज़ाहिर एक्सपेक्ट की जाती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसी तरह कहा कि बैंकिंग में अब एक्सेल का एक मैंडेटरी हो गया है और इसका बढ़ता जा रहा है रोज, तो इतनी IT स्किल्स तो बेसिक। तो आपको वो डेटा कनेक्शन कैसे 5 पीपल का सोर्सेज का डेटा कैसे पावर क्वेरी के थ्रू कनेक्ट करके एक ही शीट में लेकर आना है। मैं वो नहीं कह रहा कि सर शीट को बस कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, दूसरी शीट में कॉपी किया दूसरी को और पेस्ट कर दिया, हो गया काम हमारा सर, 5 शीटों का हो गया। ये तो देखे कर लिया ना मैंने, हो गया सर, देखे 5 शीटें मैंने मर्ज कर ली। तो ये इस तरीके से नहीं होता, आपको आप उस शीट से कनेक्ट कर लें डेटा को, वहां पे जो भी चेंजेस हो रही है पावर क्वेरी के थ्रू आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं, कनेक्शन क्योंकि बिल्डअप हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हम कवर कराएंगे, ये आप सीख लेंगे इंशाल्लाह ताला कि कैसे पावर क्वेरी के थ्रू डेटा कनेक्शंस बनाए जाते हैं। फिर यहाँ पे ऑब्वियसली डे बाय डे सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा एक रियल इशू है जो कि आता जा रहा है। तो हाउ टू प्रोटेक्ट योर डेटा, हाउ टू मेक इट पासवर्ड ड्रिवन, हाउ टू कि भाई सर्टेन सेल्स हैं वो लॉक्ड हैं, उनमें आप डेटा नहीं अपडेट कराना चाहते। मिसाल के तौर पे आपने किसी को भेजा डेटा अपना एक्सेल शीट में और उसमें नाम लिखा हुआ है, उसका आईडी लिखा हुआ है, और आपने उसमें कहा कि तुम अपना सेल्स अमाउंट अपडेट करके दे दो। आपने उसकी आईडी लिखी, उसका नाम लिखा और उसका कहा सेल्स अमाउंट अपडेट करके दे दो। उसने क्या किया, अपने नाम में भी कुछ चेंजेस कर दी, आईडी को भी चेंज कर दिया। कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना स्पेशल यूजर्स जो जितना काम दिया जाए उससे थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं, तो ये उन्होंने एक्स्ट्रा जो काम किया तो डेटा को ही खराब कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आपने जब ऐसे यूजर्स को भेजा, आईडी को लॉक कर दिया, नाम को लॉक कर दिया, आपने जो है वो सिर्फ सेल्स की फील्ड को एम्प्टी छोड़ा कि उसमें वो अपडेट करे, बाकी कहीं पे वो काम नहीं कर सकेगा, आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसका एक्सेस। हाउ डू यू डू दैट, राइट? Again, these are simple techniques that we will be covering into this whole online and on-campus training, जहां पे हम आपको data security features के बारे में कवर कराएंगे डिटेल में। Python is one of the more recent topics. I know कि ये सबके लिए शायद relevant इतना ना भी हो, relevant हो भी लेकिन जब आप ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि आपको नए ट्रेंड्स का बताएं कि न्यू ट्रेंड्स में क्या हो रहा है, हाउ डू यू इंटीग्रेट पाइथन इनटू इट। और आप जब उसको देखेंगे तो फिर आप यूज बनाएंगे ना उसका। जब तक आपका माइंड ही ओपन नहीं होगा तो फिर आप कैसे आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। तो हियर वी विल बी अगेन, यू डोंट नीड अ हाई फाई IT बैकग्राउंड इन इट, जस्ट बेसिक लेवल ऑफ IT नॉलेज अगर आपकी है, जो कि MS Excel भी यूज हो रही होती है, उसी को ही हम पाइथन में इंटीग्रेट करना आपको कवर कराएंगे। इसके साथ साथ फाइनल हमारा लर्निंग आउटकम ये होगा कि हम आपको डैशबोर्ड्स कवर कराएंगे ताकि आप जो है वो मीनिंगफुल एनालिसिस कर सकें और जो है वो अपनी मैनेजमेंट को एक रोबस्ट जो है वो। जी बिल्कुल मिर्जा मेहदी बेग, थैंक यू सो मच फॉर योर चैट। जी बिल्कुल, क्वेश्चंस को डेफिनेटली हम अलाउ करेंगे टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस सेशन। अभी हम करंटली प्रेजेंटेशन से गो थ्रू कर रहे हैं।
तो हम जो है वो डैशबोर्ड्स को कवर करेंगे। अब ये डैशबोर्ड्स क्या हैं, कैसे एनालाइज किया जाएगा डेटा को, उसके हम चैप्टर प्रीव्यूज भी आपको आगे चल के देंगे। सो दीज आर द आउटकम्स दैट विल बी कवरिंग इनटू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके साथ साथ नाउ लेट अस गो थ्रू द कंप्लीट प्रोग्राम आउटलाइन इन अ स्नैपशॉट। यहां पे हम आपको जो है वो जो भी ये टोटल 9 मॉड्यूल्स हैं, मैं प्लीज रिक्वेस्ट यू टू रीड द फर्स्ट 4। Manage workbook, format, clean data, manage integrity, इंटेग्रिटी। or manage problem. एक्सीलेंट। जी मिस, अगर पढ़ लें 5 ऑनवर्ड्स। जी जी, okay, that's it. Thank you so much for your contribution. So basically here we will be covering the whole 9 modules, which again the main thing here is for you a structure, a logical sequence. पहले आप वर्कबुक को मैनेज करना सीखेंगे, फिर आप कैसे डेटा को क्लीन किया जाता है, उसमें क्या क्या फॉर्मूलाज है। मिसाल के तौर पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला होता है ट्रिम का फॉर्मूला। ट्रिम का फॉर्मूला कितनों ने यूज किया इससे पहले? एनीबडी हैज हर्ड यूज? आपने यूज किया ट्रिम का? ओके, गुड। तो ट्रिम का फॉर्मूला की क्या एप्लीकेशन है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? तो हम ट्रिम का इस तरीके के और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करेंगे टू क्लीन द डेटा, मैनेज इंटेग्रिटी, मैनेज फॉर्मूलाज बाय ओन। अगेन फॉर्मूलाज में 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है जो कि आप फॉर्मूला अपने खुद डाल रहे होंगे, लेकिन कुछ होंगे मैनेज फॉर्मूला जो को पायलट ऐड करेगा। को पायलट के थ्रू आप लर्न करना सीखेंगे कि आपको एआई ही खुद बताएगी कि ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। क्योंकि बाजू का होता है ना, आप काम करना चाह रहे हैं और आपको पता नहीं होता कि कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूं ताकि उससे मेरा काम हो जाए। यहां पे आप उससे सवाल पूछे, वही आपको उस डेटा पे आपको सजेस्ट कर दे कि भाई ये फॉर्मूला यूज कर लो, दिस कैन वर्क थ्रू। मैनेज फोरकास्टिंग, अगेन दिस कैन हेल्प फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंट्स या बैंकिंग प्रोफेशनल, उनके लिए थोड़ा सा व्हाट इफ एनालिसिस उसको काफी कवर कर लेती है। एक्सेल पावर सिस्टम्स में पावर क्वेरी, पावर पिवट आ जाता है। आपने मैनेज वर्कबुक से शुरू किया, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। फिर आप आए यहाँ पे डैशबोर्ड पे। सो देयर इज द होल स्टोरी दैट गोज ऑन। वी कैन नॉट पुट के डैशबोर्ड वहां पे डाल दो, इंटेग्रिटी यहाँ पे कर दो, सिक्योरिटी यहाँ, मतलब देयर इज नो सीक्वेंस। वी गो थ्रू अ लॉजिकल पैटर्न। अब ये वो चीजें हैं जो कि आपको जो है वो हेल्प करती हैं कि आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बेस्ट रहे, बिकॉज आप स्लोली एंड ग्रेजुअली एडवांस लेवल पे जाते जा रहे हैं और एक स्ट्रक्चर है जिसको आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। So with that, now I would like to welcome Uzair, who will be leading the session and providing you a detailed overview of the training modules that we'll be covering into this training with a huge round of applause. Come on. Tell me. All right. Well, अस्सलाम वालेकुम ऑल, दिस इज उज़ैर रशीद बेग। राव मोहम्मद कौन है आप में से? अच्छा, एक स्टूडेंट का आया था। तो एनीवे, सो सॉरी फॉर द लेट, मेरा सेशन ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें से मैं आया हूँ आप लोगों को टाइम देने के लिए कुछ। दिस इज उज़ैर रशीद बेग, currently associated with Systems Limited as a consultant, business intelligence. More than 8 years of experience I have been associated with the Zelbury Fashion Retail, Hilal Foods Associate, Hilal Food Group, and the Arthur Lawrence as well. So currently occupational systems के साथ है, साथ साथ में टेक्नोलॉजिकल एडवाइजर रिपोर्टिंग आर्थर लॉरेंस के साथ भी, और यहाँ से कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ सिंस मोर देन 1.5 ईयर, 1.5 साल ही हो गया। ओके, सो दिस इज ऑन द होल जर्नी। एकेडमिक्स की बात करें तो 2015 में इंजीनियरिंग की थी इन एनवायरनमेंट, और 2021 में CBM से MBA किया था मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। सो ये एक प्रोफेशनल जर्नी और एकेडमिक जर्नी थी। यहाँ पर हम सारे आए हैं टू लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग। आप सारे मोस्टली जो लग रहा है वर्किंग प्रोफेशनल्स ही हैं अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में। आप हमदर्द में रह चुके हैं लोग? अच्छा, देखा देखा लग रहा है कुछ। खैर एनीवे, सो फार सो गुड। यहाँ तक कैसा रहा आप लोगों का जर्नी? जो फरहान ने आपको चीज़ें एलेबरेट करी उसमें टोटल हम 9 मॉड्यूल्स कवर कर रहे होंगे इसके अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम द मैनेज वर्कबुक। मैनेज वर्कबुक का मकसद ये हुआ है आपका कि डेटा की गवर्नेंस आ जाती है, डेटा को किस तरह से आप स्टोर कर रहे हैं, उसकी गवर्नेंस क्या है। गवर्नेंस का मतलब ये होता है सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा पर्टेन करी होती चीज़ें। फॉर इंस्टेंस के मुझे किस तरह से उसको सेल लेवल, देखिए एक्सेल जो है वो 3 चीज़ों के ऊपर चल रहा होता है, सेल्स, रो एंड कॉलम।
यही कॉन्सेप्ट बनाता है आपका टेबल्स, और मुख्तलिफ टेबल्स को आपस में जब कैस्केड कर लें यानी ये जोड़ लें तो डेटाबेस बन जाता है। सो अल्टीमेटली एक्सेल का मकसद सिर्फ डेटाबेस स्प्रेडशीट्स नहीं होता, आप उसमें ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। उसमें आप जो अकाउंटिंग के लोग हैं वो एज ए स्प्रेडशीट के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, जो बिजनेस इंटेलिजेंस के या डेटा एनालिस्ट के लोग होते हैं वो उसको एज अ टेबल्स के तौर पे उसको यूज़ कर रहे होते हैं, और फिर अपनी रिपोर्टिंग कहीं और कर रहे होते हैं। कहीं रिपोर्टिंग का मकसद ये कि अगर कहीं आपको बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर, डीप लेवल के ऊपर विजुअलाइज करवाना है, तो फिर वो पावर BI सिस्टम्स, टैबलो सिस्टम, वो सिस्टम जो रिपोर्टिंग के एक्सपेक्ट्स हैं वहाँ कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक एंड है। डेटा जो हमेशा डैशबोर्ड्स होते हैं, इट्स आउटकम ऑफ द डेटा। अगर आपके पास रो डेटा नहीं होगा, रॉ डेटा नहीं होगा, तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो वो पूरी होल जर्नी है, उस पूरी होल जर्नी को कैसे कवर किया जाएगा, इन पूरे 9 मॉड्यूल्स में कवर किया जा रहा होता है, जिसमें हम पहले डेटा गवर्नेंस की बात कर रहे होते हैं, इसकी लुक एंड फील कैसी है, कितने किस्म के टैब्स होते हैं, कितनी कस्टमाइज रिबन्स होती हैं, उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ों को आप देख रहे होते हैं। फिर सेकंड में आता है फॉर्मेट। अच्छा, फॉर्मेट में नॉर्मली हमारा जो सेशन होता है वो थोड़ा सा लंबा जाता है, गालिबन 2 से 3 सेशंस, 2 सेशन इसके ऊपर लग रहे होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप जितना भी जैसे मैंने आपको बताया कि डैशबोर्ड का काम क्या है, डैशबोर्ड क्या एक आउटकम है, बिल्कुल लास्ट में जब आपके पास आ रहा होता है। सो इसका मतलब कि पहले पूरी एक जर्नी रिकॉल हुई होती है, कॉल हुई होती है, उसमें क्लीनिंग का एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डेटा एनालिस्ट है उसमें रिसर्च ये कहती है कि 60 to 70% डेटा एनालिस्ट अपना काम डेटा की क्लीनिंग में कर रहे होते हैं। एक कॉन्सेप्ट है ETL का, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लोड। एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लोड एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है ये कि मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 सिस्टम्स हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप लोगों में से कोई FMCG से ताल्लुक रखता है तो उसको बहुत अच्छे से, या फार्मास्यूटिकल से, तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि प्राइमरी सिस्टम और सेकेंडरी सिस्टम 2 किस्म के होते हैं। अगर मैं B2B सेल्स कर रहा हूँ तो मेरे पास प्राइमरी है, और अगर मैं B2C सेल्स कर रहा हूँ तो मेरे पास सेकेंडरी सिस्टम्स है। सो मेरे पास 2 सिस्टम्स हैं, मुझे एक जगह उसको कैस्केड करना और वहां से उसको रिपोर्ट करना है। सो अल्टीमेटली मैं दोनों सिस्टम से एक्सट्रैक्ट करूंगा, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा। वो जो ट्रांसफॉर्म वाला हिस्सा है वो मेरे लिए क्लीनिंग का पार्ट होता है। फॉर इंस्टेंस मेरे सिस्टम में DDMM वाइवर डेटा है, आपके सिस्टम में MMDD वाइवर डेटा है। दुनिया का सबसे बड़ा मसला जो कभी रिजॉल्व नहीं हो सका वो डेट का फॉर्मेट है। मेरे सिस्टम का जो फॉर्मेट होगा आप जो भेजेंगे उससे बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरे सिस्टम का फॉर्मेट चेंज है। सो वो किस तरह से डेट्स को आपने बिल्कुल क्लैरिफाई रखना है। अदरवाइज क्या होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपका डेटा ही सही नहीं आएगा तो आपका आउटकम भी गलत निकलेगा। सो आपकी जितनी भी होल जर्नी थी, मेहनत थी, वो सारी सफर हो गई। सो ये चीज़ें क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती हैं। क्लीनिंग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो गिन के फॉर्मुलेशंस हैं उनको यूज़ करें। देखिए एक्सेल में ना ले दे के याद रखने वाले जो फॉर्मूले हैं इनिशियल लेवल पे, अगर आप ने एक्सेल कर भी लिया, जो कर लेता है, हर कोई कर लेता है, एक काम आप कर रहे हैं 4 साल में 10 साल में सीख ही जाता है बंदा, तो ले दे के 100-150 फॉर्मुलेशन हैं, लेकिन कब लगाना है, दिस इज द मेन चैलेंज। कब हमने उसको यूटिलाइज करना है, कौन सा फॉर्मुलेशन कब है। अब जैसे कि मैनेज बाय AI हमने जो उसके ऊपर क्या कहते हैं डिस्प्ले करवाया, फॉर इंस्टेंस आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये फॉर्मूला लगाऊं ये लगाऊं, सो ChatGPT में जाएं, Copilot पे जाएं, अपना क्यूरी वहाँ लिखें, अपनी लॉजिक लिखें कि भाई मेरा ये लॉजिक है, इसके अगेंस्ट बताइए कि मैं कौन सी लॉजिक फॉर्मुलेशन अप्लाई कर सकता हूँ, फिर वो मुझे फॉर्मूला दे देगा। अल्टीमेटली मुझे फॉर्मूला दे दिया उसने, लेकिन मैं नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे उसकी एक्सपर्टीज ही नहीं है। अगर अगर नहीं है तो क्या करूँ, मैं लगा ही नहीं सकता। तो वो जो कहते हैं कि लोग कि भाई आपको अब ह्यूमन को रिप्लेस करने के लिए या आपके सिस्टम्स आ गए, तो विच इज़ ऑफ द रॉन्ग, क्योंकि चीज़ें इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी आपको तरीक़ेकार पता होना चाहिए कि कैसे आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे, उसको लॉजिक देंगे, वो आपको जब चीज़ देगा, फॉर्मुलेशन देगा, तो आप उसे कैसे अप्लाई कर सकेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा फर्क होता है। सो ये तमाम चीज़ों को आप देख रहे होंगे फॉर्मेट्स के अंदर, फॉर्मेट क्लीनिंग के अंदर, जिसमें हम वी स्टैक यूज़ करेंगे, जिसमें 2 पोल्स यूज़ करेंगे, 2 रोज यूज़ करेंगे। फरहान ने आपको ट्रिम बताया है। ट्रिम नॉर्मली किसने यूज़ किया है? तो क्या करता है ट्रिम? नो, ट्रिम का आसान नहीं, ट्रंक का कोई फॉर्मुलेशन नहीं होता। ट्रंकेट होता है जो डेटाबेसेस में यूज होता है, उसका मतलब ये होता है कि पूरे पूरे टेबल को वाइप आउट कर दे, रिमूव कर दे। ट्रिम का अगर आसान सा तर्जुमा करें तो मकसद क्या है कि जितनी भी आगे पीछे स्पेसेस हैं उसको रिमूव करा देगा। जी, स्पेस को, जी, डिजिट्स का तो मकसद ही नहीं, डिजिट्स तो आपका डेटा है, वो डिजिट्स को किस बेस के ऊपर रिमूव करेगा, कोई लॉजिक तो नहीं दे सकते ना उस पर। ट्रिम का मतलब क्या है, बाल कटवाने जाते हैं, ट्रिम कर दो,
उड़ा देता साइड है। सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट है, आसान से बातों का क्या होता है कि यूजर जब डेटा इनपुट करते हैं जो आपके पास आती है, तो उसमें क्या होता है कि नाम किसी ने, मिसाल के तौर पे आपका नाम क्या है, मोहम्मद रमजान, मोहम्मद रमजान स्पेस आगे स्पेस डाले, या आपके पास तो NIC है, NIC में आगे स्पेस एंटर एक स्पेस कर देंगे, तो ऐसी स्पेस जिसको का फॉर्मूला खत्म करके सिर्फ टेक्स्ट करते हैं, सिर्फ टैक्स रख रहा होता है कि जितना भी 20 का पोर्शन हो, स्पेशल अनवांटेड स्पेस। अदरवाइज वो अगर एक स्पेस आ जाए ना, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पूरे पूरे हफ्ते लग जाते हैं वो एक चीज ढूंढने में कि काम मसला अटका हुआ है, क्योंकि आपने पूरी पाइपलाइन जनरेट की हुई होती है ETL के थ्रू, कि वो जब डेटा ही नहीं आ रहा, मिसाल के तौर पर कराची है, अगर कोई FMCG में तो उसके पास सेल्स आ रही है तो कराची की 2 स्पेलिंग्स आ गई, अब आप पकड़ते हुए रह जाएंगे कि मसला कहाँ पड़ता, कि कराची की 2 स्पेलिंग्स ही आ रही है। जब डीप डाउन जाके चेक किया तो पता चला कि वो स्पेस गलती से बंदे ने मैनुअली एंटर किया, उसमें स्पेस डल गया, अब वो पूरा सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया। तो ये चैलेंजेस होते हैं, इनको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं ऑटोमेशन के थ्रू, क्योंकि जितना ह्यूमन का इंटरवेंशन होगा उतने एरर के चांसेस हैं। इसीलिए आपके सिस्टम्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली इतने बड़े से बड़े सिस्टम आप बना लें, रिपोर्टिंग हमेशा एक्सेल पे मांगी जा रही होती है, क्योंकि लुक एंड फील बेहतर है। अपना एडहॉक एनालिसिस करना है तो वहाँ फौरन अपने साइड में फॉर्मुलेशन पाक करा और उसको निकाल लिया, तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं। सिमिलरली फिर मैनेज इंटेग्रिटी, किस तरह से आप अपने डेटा को कॉम्प्रोमाइज होने से बचा सकें। गवर्नेंस आपने देखी, जैसे कि मैनेज वर्कबुक पे हमने सिक्योरिटी और टिप्स एंड ट्रिक की बात की। माउस कम से कम यूज किया जा रहा होता है अगर आप प्रो यूजर हैं तो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मिसाल के तौर पे यहाँ से सवाल है, अगर मैं सेल A1 पे खड़ा हूँ, जब सब एक्सेल की क्लास लेना है तो व्हाट आई बिलीव कि आपको इतना अंदाजा होगा कि व्हाट इज सेल A1, ठीक है। तो जब मैं सेल A1 पे खड़ा हूँ और मुझे सेल A2 पे नहीं जाना, मुझे एंटर करके वहीं रहना है, ठीक है। सो मैं ऐसी कौन सी शॉर्ट की यूज करूंगा कि मैं जैसे ही एंटर करूँ, अमूमन क्या होता है, एंटर किया आप एक सेल नीचे उतर गए, ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा, मुझे नहीं उतरना, मुझे वहीं पर रहना है। व्हाट इज द शॉर्ट की? नो, वो आपको नीचे स्पेस बना के दे देगा, विच इज ऑफ द कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एनवायरनमेंट में रहते हुए आप एंटर करें, आपका जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप दूसरे सेल पे नहीं उतरेंगे, वहीं पे उतरेंगे। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन नहीं पता अल्टीमेटली। सो क्या चीज़ है, ये तमाम चीज़ें हम टिप्स एंड ट्रिक्स में करा देते हैं। हर वीक हमारे पास, जिस तरह से फरहान ने शायद आपको बताया कि नॉर्मली हमारे पास 3 किस्म के सेगमेंट में स्टूडेंट्स हो रहे होते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, लीडरशिप वाले रोल्स पे लोग आए हुए होते हैं, और वो जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बड़े अभी अपनी जिंदगी के स्टार्ट में, करियर के स्टार्ट में, तीनों को साथ लेके चलना है। मकसद ये है कि अगर किसी एक को कवर कर रहे हैं तो दूसरे का जो ऑब्जेक्टिव है वो खराब ना हो। सो हर वीक कुछ ना कुछ हर एक बंदे के लिए एलिमेंट लाजमी होता है, ताकि वो कुछ ना कुछ उससे पिक रहे कि यार इन दी एंड मेरा आज का जो सेशन है ना वो खराब नहीं हुआ है। तो ये बड़ा हमारा एक एम्फेसाइज रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सीनियर होता है कहता है यार ये सब तो आता है आपका, व्हाट इज द न्यू मेरे लिए, तो वो न्यू एलिमेंट होना लाजमी होता है। तो इसलिए हम टिप्स एंड ट्रिक्स पे बहुत फोकस कराते हैं, तो उससे आपका काम बहुत ज्यादा स्मार्टली आप उसे प्ले कर सकते हैं। अच्छा, किसी को यहाँ पे कोई सवाल, विजिबिलिटी है आप लोगों को तमाम चीज़ों की? अलीबाग साहब का सवाल लेते हैं इंशाल्लाह लास्ट में, सब लोगों की जितनी भी क्यूरीज हैं वंस वी हैड जस्ट कंप्लीट ऑफ दिस, उसके बाद फिर हम इस पर आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। किसी को आवाज़ का या मसला हो रहा हो या फिर स्लाइड नज़र ना आ रही हो तो प्लीज़ सवाल रेस कर लें। मॉड्यूल 2 में ऑल ओके। जितनी भी किस्म के फॉर्मुलेशंस हैं मैक्सिमम जितने हम लिख सकते थे लिखे आवाज हैं। स्लो है आपकी। अच्छा, बाकियों को स्लो आ रही है या बाकियों को क्लियर है? अगर किसी एक को भी आ रही है इट मीन्स कि फिर बाकियों के इंटरनेट का कुछ ना कुछ मसला रहता होगा, ठीक है। सो वी स्टैक गैसेस के अंदर मौजूद नहीं है, ऑब्वियसली चीजें बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही हैं, टेक्नोलॉजी जनरल बढ़ रही है। जैसे कि एक्सेल में भी नए 2 फंक्शंस हैं, ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय। ये पार्ट होता था SQL का, लेकिन एक्सेल के अंदर भी लेकर आ चुके हैं। अभी बीटा वर्जन में इसी तरह रेजेक्स और रेज एक्सट्रैक्ट, ये 2 फॉर्मुलेशंस नहीं आई हैं, अभी बीटा वर्जन में है। सो बहुत सारी नई नई चीजें हैं जो आ रही हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि फास्ट मूवर और फर्स्ट मूवर के तौर पर लोगों को इंट्रोड्यूस करें, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाएं और इसको इम्प्लीमेंट करके एप्रिसिएशन वाले मामला को देख सकें। सिमिलरली ये सारे वो फॉर्मूला है, टेक्स्ट, राइट, लेफ्ट, मिड, अपर। मैनेज इंटेग्रिटी में जैसे आपसे जिक्र किया कि कैसे वैलिडेशन, अब उस मैनेज इंटेग्रिटी का मकसद क्या होता है कि किस तरह आप अपने डेटा की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज होने से बचा सकें।
वैलिडेशंस लगा सकें, चाहे वो डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, इट मीन्स कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो। ग्रुप डेटा, डेटा से अल्टीमेटली आप क्या एनालाइज करते हैं, निकालते हैं समरी, और उस समरी को कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज़ वन ऑफ द आर्ट। क्योंकि डेटा या समरीज को प्रेजेंट करना कि मेरा स्टेक होल्डर को कौन से कलर्स पे देखना है, उसकी क्या मेंटेलिटी है, उसको वेरिएंस देखना है, परसेंटेजेस देखनी है, या अचीवमेंट देखनी है, या एयरटेल डेट पे देखना है, मंथली डेट पे देखना है, या उसको वीकली एवरेजेस पे देखना है, क्या देखना है उसको, तो वो तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अल्टीमेटली आप उसका काम कर रहे होंगे, लेकिन एस्थेटिक सेंस आपका होना चाहिए। वो कहते हैं ना, इट्स कॉमन सेंस होना चाहिए कि कैसे आपने उसको प्रेजेंट कराना है चीज़ों को। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फौरी तौर पे हाईलाइट किस तरह से आप करवा सकते हैं चीज़ों को। कंसोलिडेशन एक दुनिया का बहुत बड़ा चैलेंज होता है, रोजाना की बने में लोग मोनोटोनस काम कर रहे होते हैं, विच इज कॉल्ड द एडमिन क्लैरिकल। आप उसे कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स वही उसका पार्ट है हमारा। फॉर्मूला बाय ऑन, सबसे अहम टाइम इंटेलिजेंस। सारे काम करते हैं अपने अपने सिस्टम्स पे, आप लोग निकालते होंगे अपनी अटेंडेंस। दुनिया का हर सिस्टम किसी ना किसी टाइम फ्रेम, टाइम इंटेलिजेंस के ऊपर चल रहा होता है, विच इज मीन ऑफ द कैलेंडर, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका फिस्कल ईयर जुलाई टू जून होता है, मोस्टली पाकिस्तान पे उन पे बजट के तौर पे जो होता है। कुछ का होता है जनवरी टू दिसंबर। तो किस तरह से आपने अपने उसको पेरोल को मैनेज करना है, या फिर और हर सिस्टम के पीछे क्या चीज़ इन्वॉल्व हुई होती है, टाइम इंटेलिजेंस, कैलेंडर। तो कैलेंडर किस तरह से डिफाइन होता है, कौन कौन से फॉर्मुलेशन लग रही होती है, वो तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस, जिसमें सबसे अहम होता है इफ्स, बुनियादी फर्क क्या है, एंड कब यूज कर सकते हैं आप इसमें, और कब यूज कर सकते हैं आप, स्विच कब यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ये वो तमाम चीजें हैं जब देख रहे होते हैं। लुकअप्स, नॉर्मली सबने लुकअप तो किया होता है, ठीक है, लेकिन कैसे आप वी लुकअप और मैच का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, यहाँ मेरा आप लोगों से सवाल है कि कि मेरे पास एक शीट है, कंसिडर करें सर आपसे, आपका नाम अली जाफरी। अली जाफरी कहाँ से होते हैं आप? स्टैंड चार्ट में दो बंदे हमारे पहले भी आए थे, अब आई डोंट नो ब्रांच बैंक, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बीच से वो चले गए थे, फिर सेशन से स्किप हो गए थे। सो MIS में थे एक शायद, रिपोर्टिंग में। एनीवे, सो फॉर इंस्टेंस आप भी रिपोर्टिंग में, क्लाइंट एक्सपीरियंस है। तो मेरे पास कंसिडर करें एक शीट है जिसमें 100 कॉलम्स है, और एक शीट जो विच इज कॉल्ड मास्टर शीट, और एक शीट है जिसमें सिर्फ 4 कॉलम्स है। दोनों किससे ज्वाइन हो सकते हैं, एक कोई ना कोई पर्टिकुलर की दी हुई है। अच्छा, कीज का कॉन्सेप्ट दो किस्म का होता है, एक प्राइमरी की होता है, एक फॉरेन की होता है। मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं किससे जाना चाहूँगा, अपने CNIC से, लेकिन मेरे पास कितने बैंक अकाउंट्स हैं, वो मेरी क्या बन गई, फॉरेन की बन गई। ये मेरे पास कितने पासपोर्ट्स, कितने हैं, पासपोर्ट के भी मुख्तलिफ 1 2 3 4 पासपोर्ट हो सकते हैं, हर पासपोर्ट का डिफरेंट नंबर होता है। सिमिलर, तो यानी कि मेरी आइडेंटिफिकेशन किससे होगी, मेरे शनाख्ती कार्ड से, वो मेरा प्राइमरी की हो गया। लेकिन मेरी बाकी चीज़ों से जो ताल्लुक रखता है, डॉक्यूमेंटेशन, वो क्या हो गई, मेरी फॉरेन की हो गई। यही कॉन्सेप्ट हर डेटाबेस के अंदर यूज हो रहा होता है, पेरेंट टेबल, चाइल्ड टेबल, फॉरेन की, प्राइमरी की, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है हर टेबल में, हर डेटाबेस, चाहे ओरेकल में चले जाएं, आप SAP में चले जाएं, आप एक्सेल में आ जाएं, आप मोंगोडीबी में, दुनिया के जितने किस्म। सो द क्वेश्चन इज के 100 कॉलम एक तरफ है और 4 कॉलम एक तरफ है। जो मुझे 4 चाहिए वो एक सीक्वेंस 1 पे रखा है, एक सीक्वेंस 10 पे है, एक सीक्वेंस 13 पे, और एक सीक्वेंस 99 पर है। सो आपसे अगर मैं कहूँ कि इस पर मुझे एक सेल पे फॉर्मूला लगा के चारों के साथ ड्रैग करके बता दें, तो आप क्या करेंगे? अच्छा, सो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 4 अलग अलग कॉलम पे जाके लुकअप्स लगा रहे होते हैं, लेकिन व्हाट वी हैव द ट्रिक कि एक सेल पे लगाएं, वो ऑटोमेटिकली खुद ड्रॉ करेगा सारे सेल्स पे, अब टॉप राइट टू लेफ्ट और टॉप टू बॉटम, क्योंकि एक्सेल आपका चल किस पर रहा होता है, लेफ्ट टू राइट के पर रन कर रहा होता है, राइट टू लेफ्ट के पर, बैकवर्ड नहीं जाता, अब राइट साइड की तरफ जा रहा होता है। सिमिलरली नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे जा रहा होता है, ठीक है। यही केस अगर आपके पास आ जाए कि आपकी जिसके थ्रू आपने लुकअप लगाना है, अगर वो कॉलम बीच में रखा हो, ठीक है, और आपने उसको हिलाना भी ना हो, और उससे पहले का डेटा चाहिए हो, तो क्या चीज़ यूज़ करते हैं, इंडेक्स मैच। सो वो तमाम चीज़ें कि कब कौन सा यूज़ करना है, फॉर्मुलेशन देखें वही गिन के 150 फॉर्मूले होंगे। व्हाट इज द मेन चैलेंजेस के यूज़ कब करना है, एप्लीकेशन कब है, अपने बिजनेस सिनेरियो को देखते हुए। जब वो टैकल कर लिया, फिर आपको सवाल वो आ गया, टूल आ गया। और अगर आपको नहीं भी फॉर इंस्टेंस पता, आप अब आपके पास बहुत सारे को पायलट हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल टूल्स हैं जिसके लिवरेज को आप यूज़ कर सकते हैं। अपने आप प्रॉम्प्ट बताएं, अपना क्यूरी बताएं, वो आपको रिजॉल्व करके दे देगा। लेकिन अल्टीमेटली लगाना आपने, वो ये नहीं करेगा कि आपकी जगह पे वो लगाएगा,
सो आपको पता होना चाहिए इटसेल्फ कि वो जो दे रहा है मुझे उसे इम्प्लॉय कैसे करना है, डिप्लॉय कैसे करना है चीज़ों को। किसी को कोई सवाल? ऑल आर क्लियर? ठीक है। सिमिलरली वही चीजें जो हम ओन पे कर रहे होंगे वो कोपायलट से कैसे कर सकते हैं आप। फॉर इंस्टेंस मैं बहुत एक नया यूजर हूँ, मेरे पास एक सेल्स का डेटा है यार, बताओ जरा एयरटेल डेटा कितनी सेल्स हो गई। ठीक है। सिमिलरली मेरी मंथ टिल डेट में टारगेट से अब तक वेरिएंस कितना रहा। ठीक है। उसके बाद मेरा वीक एवरेज, अगर मेरा बिजनेस वीकली है तो वीकली एवरेज क्या चल रहा है, एयरटेल डेट का एवरेज क्या चल रहा है। एयरटेल, क्योंकि अगर बिजनेस वीकली है, हर वीक के ऊपर सेल्स जारी होती है, वीक वाइज मॉनिटर करते हैं, तो पूरे साल के वीक कितने हो गए। फॉर इंस्टेंस अभी 25-26 वीक हो गए, तो 26 वीक का एवरेज क्या रहा। तो जो मेरा पर वीक का एवरेज का एक मार्जिन था, वो टारगेट था, उससे मैं कितना डेफिसिट पर। तो तमाम चीज़ें, टॉप 10 टिकट आइटम्स, सेलिंग पॉइंट्स कौन से हैं मेरे, तो वो तमाम चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। प्लस ये इसमें डेटा विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स, अमूमन ये काम हम कर रहे होते हैं बिल्कुल लास्ट अपने एक्सेल पावर सिस्टम्स में। वो क्या होता है, डैशबोर्डिंग रिपोर्टिंग, हम वहाँ तक पहुँचते फिर उसका जिक्र करते हैं। मैनेज फोरकास्टिंग, सबसे वो प्रोफेशनल जो प्लानिंग एंड बजट का पार्ट होते हैं कि भाई मुझे फॉर इंस्टेंस 2023 में मैंने $1 मिलियन बिजनेस किया, अब मुझे 2024 में 1.5 मिलियन डॉलर का करना है। लेकिन मसला ये है कि मैं अपनी प्लांट की कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकता, और अगर मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस पॉइंट बढ़ा दूं तो मैं उससे अपना मार्केट शेयर लूज कर दूंगा। सो ऐसे किस लेवल पर जाके मुझे ये रियल रियल टाइम चैलेंजेस होते हैं अगर कोई एफएमसीजी में या फार्मास्यूटिकल में है, क्योंकि मेन कमोडिटीज यही हैं आपकी, तो इसलिए मैं इसकी एग्जांपल बहुत ज़्यादा दे रहा होता हूँ। ये मेन कमोडिटीज ही आपकी यही हैं, एक कपड़ा है, एक खाना है, और एक दवाई है। ये तीन चीज़ों के बगैर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि वी आर कंज्यूमर। पाकिस्तान का जो मुल्क है, रिटेलर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं, तो ये एक्सपेक्ट जहन में बहुत होना चाहिए। तो किस तरह से हमने बजटिंग करनी है, किस तरह से प्लानिंग करनी है कि मैं अपनी प्लांट की कैपेसिटी को भी नहीं बढ़ा सकता, इट मीन्स कि मैं रिटेन अर्निंग भी नहीं कर सकता। मुझे अपना मार्केट शेयर भी बढ़ाना है, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रोथ मेरी इसी तरह से गेज होगी। ठीक है। प्राइस पॉइंट ₹4 वाली टॉफी है, मैं उसको ₹5.5 की नहीं कर सकता, वरना मेरा कॉम्पिटिटर मेरा इस पॉइंट को पकड़ लेगा। तो किस तरह से मुझे कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स रखने होंगे अपने पास, वो चीज़ों को देखना है। वो तमाम चीज़ें व्हाट इफ एनालिसिस विच इज द मैनेज फोरकास्टिंग में देख रहे होते हैं। फिर आता है आपका पावर क्यूरी विच इज द मॉड्यूल 7 एक्सेल पावर सिस्टम। अल्टीमेटली क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, आपका काम कितना ज्यादा ऑटोमेट हो रहा है। जब 7 तक पहुंचते हैं तो पीपल आर वेरी मच डिस्टर्ब कि अब हम एक्सेल क्लास 1 को नहीं रिपीट कर सकते ऑब्वियसली। हम एक जो बिल्कुल जीरो लेवल पे थे आज 7वें पे पहुंचे, तो किसी हद तक पहुंचे होंगे। सो इंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो अज्यूम कि आपको आता है, इतना सीख लिया आपने, समझ लिया, तभी हम 7वें तक पहुंचे। ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं। डेली टास्क को किस तरह से आप ऑटोमेट कर सकते हैं, ईटीएल कैसे यानी पाइपलाइन कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ऑटोमेशन कैसे आप कर सकते हैं, और फिर इन चीज़ों को कॉल करते हुए आप अपना डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। यहाँ किसी से सवाल है? सर आपसे, आपका नाम? शाजिब। कहाँ होते हैं आप? अल जदीद। वही एफएमसीजी सुपरमार्केट का काम है। पावर और पावर पिवट और पावर पिवट का क्या डिफरेंस है मेन? पावर पिवट यूज किया हुआ है और पिवट और पावर पिवट। ओके, यस मैं साहब। ओके, एनीवन ऑनलाइन जितने हैं हमारे पास? जी जी मिर्जा, आप लास्ट में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस। पिवट टेबल जिसने यूज किया उसको पता है कि साइमल्टेनियसली आप सिर्फ एक पग में एक टेबल को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन फॉर इंस्टेंस व्हाट इफ कि अगर मुझे दो या दो से ज्यादा टेबल्स को एक साथ एनालाइज करना है, पिवट में कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर दिस थिंग यू हैव टू गो फॉर द पावर पिवट। मिसाल के तौर पे मेरे पास टारगेट वर्सेस सेल्स है। टारगेट तो मैंने महीने के साल के शुरू पे बना लिया, लेकिन सेल तो मेरे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगी ना। मैं उसको कैसे देख सकता हूँ, यानी इसका मतलब दो टेबल्स को साइमल्टेनियसली एनालाइज करने का आ गया, मैं उसको कैसे देख सकता हूँ। तो वो मेरे लिए पावर पिवट के अंदर जाके यूज हो रहा होगा, उसका यूजेज मॉडल जो डिजाइन होता है वो वहां पर होगा। फिर लास्ट में आप जाते हैं पाइथन के ऊपर। अच्छा, पाइथन इट्स अ वेरी मच बेसिक, हम जो अभी इसको कवर कर रहे हैं बहुत इनिशियल लेवल पे, क्योंकि गालिबन यही साल है कि पाइथन इंट्रोड्यूस हुआ है बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली आपके एक्सेल का पार्ट बना है। पाइथन एक लैंग्वेज है जो बहुत सारे काम परफॉर्म कर रही होती है, जैसे कि ऑटोमेशन जो हम पावर क्वेरी में के जरिए कर रहे होते हैं। सिमिलरली फिर आता है विजुअलाइजेशन। ये दो किस्म के उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक ऑटोमेशन
एक आपका विजुअलाइजेशन। सो हम सिर्फ विजुअलाइजेशन के एक्सपेक्ट को कवर कर रहे होते हैं कि डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं, लाइब्रेरीज कैसे कॉल कर सकते हैं हम उसके जरिए क्योंकि एक्सेल में बहुत, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व किया हो कि चार्ट बार ग्राफ के कुछ लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। फॉर इंस्टेंस मुझे ग्राफ बनाना है जिसमें मेरे पास मंथ की सेल हो और हर मंथ का एवरेज हो, ठीक है। सो वो एवरेज वाला पोर्शन नहीं है, मेरे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है एक्सेल में, मुझे बाय डिफॉल्ट डेवलप करना पड़ेगा, तो वो तमाम चीज़ें हम इसमें कर रहे होते हैं। सो कुछ विजुअलाइजेशन की किस तरह से फॉर्मुलेशन होती हैं, जिस इस पूरे ट्रेनिंग का 5% थियोरेटिकल भी बेस्ड है। अब जैसे मैं कहूँ मिसाल के तौर पे सिंटैक्स, डज एनीवन नो व्हाट इज सिंटैक्स? हर फॉर्मूले का कोई ना कोई सिंटैक्स होता है, अगर जब तक आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे तब तक ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पे वी लुकअप है, इसका सिंटैक्स क्या है? लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम इंडेक्स नंबर एंड लुकअप रेंज, यही है जी, रेंज लुकअप। जब तक ये पूरा फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक फॉर्मूला एरर आपको थ्रो करता रहेगा। सो अल्टीमेटली आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए, इस तरह के कुछ जार्गन्स हैं वो पता होने चाहिए, ताकि जब भी हम बात करें तो आप कनेक्ट कर सकें अपने माइंड को कि ओके विच इज वन ऑफ द थिंग कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो चीज़ कहाँ से पर्टेन कर रही है। सो पूरी ट्रेनिंग में व्हाट इज द अहम थिंग, दीज 9 मॉड्यूल्स का ब्रीफली डिस्क्रिप्शन कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे एंड ऑल द थिंग्स। यहाँ पे किसी को कोई सवाल? जी ऑनलाइन आप लोगों का। माय नेम इज अली बख्श, करेंटली आई एम वर्किंग इलेक्ट्रिक इंजीनियर वेस्टर्न पेमेंट कंपनी, cement company. I have joined the course due to facing the power systems and heard about your center. Okay. जी मिर्जा आपका क्या सवाल है प्लीज बताइए, या फरहान को भेज दीजिएगा, हनी भाई फरहान को भेज दीजिएगा। Yeah, Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। Thank you so much. आपने काफ़ी brief explanation दी about the advanced Excel and how we can employ in our workplace. मेरे 2-3 सवाल हैं। First of all ये कि मैं अपने बारे में बता दूँ कि I work for pharmaceutical company and मैं काफ़ी हद तक मेरा database और मेरा dashboard के ऊपर काम होता है, which I have to analyze for my region as far as my institutional business. अब मुझे 2-3 स्ट्रगल्स होते हैं जिसके लिए मुझे बहुत टाइम लगता है। पिवट टेबल के ऊपर टारगेट वर्सेस अचीवमेंट होता है, देन वी हैव टू मेक फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन निकालना तो ओवर लास्ट ईयर। तो हम रॉ डेटा हमें मिल रहा होता है, तो रॉ डेटा को हम पिवट टेबल पे हम जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो फॉर सम रीज़न जहाँ पर फर्स्ट सेल के ऊपर अगर कोई स्पेस होती है या कोई गैप आता है तो वो उठाता नहीं है। तो हम इसको कैसे करें सही, इसलिए कि फिर वो मुझे सबको ठीक करना पड़ता है मैनुअली, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सेकंड थिंग इज है कि हम रॉ डेटा को स्ट्रक्चर करने के बाद प्रेजेंटेशन फॉर्म में किस तरह से लेके आते हैं एज फार एज टारगेट वर्सेस अचीवमेंट। जो आप बता रहे हैं एनालिसिस एनआईसीज और ये तो इट्स गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक दैट्स फॉर बिगनर्स, बट स्ट्रगल हम लोग को प्रोफेशनली होता है कि टारगेट वर्सेस अचीवमेंट या कॉन्ट्रीब्यूशन या उसके कोई प्रोबेबिलिटी इफ का फॉर्मूला हमें किस तरह से डेटा को एनालाइज करना है कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कॉल्स कितनी हुई हैं, 2 से ज़्यादा हो गई हैं या 2 से कम हुई है, तो इफ के फॉर्मूला में किस तरह से अप्लाई होगा, थिंग्स लाइक दैट। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए जहाँ तक कि आपकी रिक्वायरमेंट है ना विच इज ऑफ द कस्टम बेस्ड, देखिए हर बिजनेस का सिनेरियो मुख्तलिफ होता है। अब स्पेशली अब आपने कहा कि आपको प्रोबेबिलिटी यूज करनी है कि मिसाल के तौर पे कि भाई अगर कहीं पे सेल कम हो रही है तो व्हाट इज द रीजन, क्या जो नया फील्ड ऑफ सेल ऑफिसर आया है वो क्या नया है या वो क्या कहते हैं सही से रीच नहीं कर पा रहा है। सो अल्टीमेटली वो जो एग्जाम्पल हो गई वो बहुत ही ज्यादा कस्टम हो गई आपके अपने बिजनेस के मुताबिक, ठीक है। सो ऑब्वियसली हम कवर जो करते हैं वो एक जेनेरिक वे में कर रहे होते हैं, एक डेटा सेट होता है जो हम एक म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड करते हैं कि ओके भाई वी विल वर्क ऑन फॉर इंस्टेंस सप्लाई चेन के भी डेटा पे काम करेंगे, किसी स्टाफ ऑगमेंटेशन के डेटा पे काम करेंगे, लेकिन उससे आपका समहाउ नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि एनालिसिस तो हम करते हैं, ये लाइक हम तो कर ही रहे होते हैं, बट before making an analysis obviously we have to structure the data in अब जैसे आपने कहा कि आपको स्पेसेस आ जाती हैं तो उसके लिए क्या है कि आप जब कॉपी करके अपने नए वर्क के ऊपर ला रहे होते हैं तो पहले ही आप उसे बाय डिफॉल्ट पूरे
अपने वर्कबुक को या वर्कशीट को जो है ना वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में लेकर आ जाए। अदरवाइज क्या होगा, फॉर इंस्टेंस अगर आपका CNIC कोई नंबर है, मोबाइल नंबर है मिसाल के तौर पे 11 डिजिट का है, तो वो आपको सिग्निफिकेंट वैल्यूज में देना शुरू कर देगा प्लस करके। सो वो उन चीज़ों को कैसे आप ओवरकम कर सकें, तो वो चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं। बिल्कुल इस तरह का फिर आपकी लॉजिक्स हैं वो भी हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। पर्सनल लेवल पे भी देख रहे होते हैं, जैसे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स होते हैं वो सवाल करते हैं कि यार यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ना सब प्रोफेशनल्स हैं जी और नॉर्मली सब लोगों को स्ट्रगल इसी तरह की होती है। अब आपने कहा कि टेक्स्ट पे रहते हैं, इसलिए कि टेक्स्ट जब हम लोग उसको डाउनलोड कर रहे होते हैं वो मेरे ख्याल से टेक्स्ट में ही आ रहा होता है। उसको हम लोग फिर सही करने के बाद फिर उसको पिवट पे लेके जाते हैं, इसलिए कि उसके बाद वो एक्चुअली आपको पता है कि वो अगर नहीं होगा स्ट्रक्चर तो पिवट उठाएगा ही नहीं, वो उठाता ही नहीं है अगर बिगिनिंग ऑफ द सेल में हो। फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल कोई सेल है 2020 की, राइट, तो 2020 के अंदर वो जो है वो जो हम उसको उठा रहे होते हैं तो पहले में ही गैप आ चुका होता है, इसलिए कि आपका प्रोडक्ट नेम आ रहा होता है, फिर कैटेगरी आ रहा होता है, फिर वो आ रहा होता है, फिर हमको सब कुछ थोड़ा स्ट्रक्चर करना होता है, ब्रीफ करके फिर सही करना होता है। दैट इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम फॉर मी। एनीवेज हाँ आई थिंक वो चीजें अब जैसे कि मिसाल के तौर पे 2020 में आपके एक प्रोडक्ट का नाम XYZ है, और अब वो 2023 में जो है वो वही प्रोडक्ट का नाम ABC हो चुका है। ठीक है, सो अब आप उसका कैसे कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकेंगे अपना सेम पीरियड लास्ट ईयर के कंपैरेटिव एनालिसिस के, जहाँ से आप उसकी ग्रोथ बता सकें। सो वो आप पावर क्यूरी में जाके उसके नेमिंग कन्वेंशन को चेंज कर दें, और फिर जब भी वो आपके पास डेटा नया आएगा तो आपको बार बार वो मोनोटोनस काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बैक एंड पे मॉडलिंग जो की हुई होगी वहां पर आपने उसको प्री डिफाइन कर दिया होगा कि भाई जब भी ये आएगा ये नेम कॉल होगा तो इस नेम को इस नेम के साथ रेप्लिकेट कर देना है। तो ये वाले काम जो आप कह रहे हैं आपको भी बार होता है। बार और उसका ये कि फॉर एग्जांपल अगर 2020 ऊपर ईयर मेंशन होता है और वो ऊपर की जो सेल है वो बाय रॉ डेटा वो मर्ज हुआ होता है, राइट, और नीचे उसके अंदर जो डिटेल लिखी होती है प्रोडक्ट ए एंड बी की फॉर इंस्टेंस, एंड देन टारगेट वर्सेस अचीवमेंट। तो बात सारी ये है कि ये सब कुछ स्ट्रक्चर करने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज नॉर्मली लोग तो ये हमारे दे थ्रो द डेटा ऑन अस। अब हम लोग को उसको स्ट्रक्चर करना कि पिवट टेबल उठा ले, पिवट टेबल उठाता नहीं जब तक उसके मुताबिक आप उसको स्ट्रक्चर ना करें। उसके लिए आपको एक बार वॉक थ्रू करवाना पड़ेगा अपना डेटा कि आपको जो एक्चुअल मसला आ रहा है वो किस लेवल का है, और फिर हम उसे किस तरह से केटर कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है जो मेरे ख्याल से सभी को प्रॉब्लम फेस होती होंगी। अच्छा आई डोंट ठीक है, आप अपना डेटा शो करवा दीजिएगा, मतलब आप मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से नंबर ले लीजिएगा, और फिर मुझे बता दें अगर आप स्क्रीनशॉट भी भेज दें कि इस तरह के चैलेंजेस आपको आ रहे हैं। तो So, मैं आपको जब हमारे सेशन होंगे ना जिसपे हम लोग Q&A सेशन होगा, तो आई हम्म विल एक्चुअली शेयर यू द स्क्रीनशॉट्स एंड एवरीथिंग। हाँ, आप अभी अभी हमारा लास्ट होगा। उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा और सबके एक लर्निंग एस्पेक्ट भी जाएगा ना कि यार ओके दिस इज आल्सो द परफेक्ट परफेक्ट, वो वहाँ पे उसको फिर कवर कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो है वो एक चीज मैं ऐड करता चलूं कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग व्हाट वी डू इज वी कवर द अप्रोच। आपको एक दफा अप्रोच अगर आ जाती है किसी भी चीज को हैंडल करने की, तो फिर सिचुएशन चाहे कोई भी हो, यू नो दैट इसको मुझे अप्रोच कैसे करना है। अब जैसे आपने ये राइटली पॉइंटेड आउट किया कि मेरे पास जो है वो 2020 का जो डेटा है उसको मैं टारगेट वर्सेस एक्चुअल है उसको मैं पिवट टेबल्स के थ्रू अपडेट नहीं कर पा रहा। नाउ वी विल बी कवरिंग द अप्रोच कि इसको कैसे हैंडल करना है एज अ स्टैंडर्ड, ताकि आप जो है वो उसको नेक्स्ट टाइम जब आपके पास इश्यू आए तो यू शुड बी एबल टू हैंडल इट योरसेल्फ, बिकॉज our goal is through this training to make you self sufficient, ताकि आप फिर किसी के ऊपर रिलाय ना करें। आप एक ही दफे में ट्रेनिंग लेके इतने अच्छे तरीके से एम्पावर हो जाएं, और फिर उसमें यह होगा कि आप अगर अपना डेटा शेयर करना चाहते हैं विच विल बी बेनिफिशियल टू द स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स, जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो आपके इस डेटा के थ्रू उसको आप भले ट्वीक कर दें, नंबर उसके चेंज कर दें, लेकिन उज़ैर कैन कवर दैट एज अ केस स्टडी फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि आपको जो है वो बेहतर तरीके से आपको भी लर्निंग हो जाए और उसके थ्रू पार्टिसिपेंट्स को भी, क्योंकि हमें हर वक्त कोई ना कोई कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए कोई ना कोई डेटा पॉइंट तो चाहिए होता है। अगर आपका डेटा पॉइंट मिलेगा हम उसको कवर करा के आपको भी बेनिफिट मिलेगा और स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिल जाएगा थ्रू दैट, एंड वी विल बी कवरिंग द अप्रोच थ्रू दैट कि भाई इसको अप्रोच कर कैसे हैंडल करना है नेक्स्ट। चलिए फरहान, मैं क्लास ले लेता हूँ, कोई भी सवाल हो आप मुझे बता देगा। जी आ जाएगा। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, so let's move on to further few slides.
आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ पे हमने फॉर्मूला के थ्रू हम गो थ्रू हुए थे कि क्या क्या फॉर्मूलाज होंगे. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट few other developments that we have had in recent. Let's say अब ये एक डैशबोर्ड है जो हमने कवर किया था इन एक सेकंड में इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं मेरे ख्याल से. Just give me a moment. Let me open the presentation again. Okay. All right. So these are some of the other recent developments that we've had in this training. अब ये जैसे मिसाल के तौर पे एक डैशबोर्ड है. यहाँ पे आपको जो है वो डैशबोर्ड को कैसे ऑटोमेट करना है उसको कवर किया है पूरा डिटेल में. ये सारे इन्फोग्राफिक्स हैं जो यूज हो रहे हैं. यहाँ पे क्या हुआ है, आवाज थोड़ा लाउड है. यहाँ पे एक चीज आपने देखी कि हमने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया हुआ है और एडवांस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी अप्लाई किया हुआ है. तो वी विल बी कवरिंग के आप अपनी जब रिपोर्ट्स हैं उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग और एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे अप्लाई करेंगे ताकि जब आप एनालाइज कर रहे हो डेटा को तो वो आपको जो है वो मीनिंगफुल एक एनालिसिस दे सके. यहाँ पे ये एक और डैशबोर्ड है जो कि हमने अभी रिसेंटली एक ट्रेनिंग में बताया था जिसमें जो है वो यू आर एबल टू सी कंप्लीट एक कॉफी शॉप का एक डैशबोर्ड है. सेल्स शॉप अगेन डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. हमें इन एग्जांपल्स के थ्रू अपनी अप्रोच को कवर करना है कि यार अप्रोच कैसे करना है. फिर सिचुएशन चाहे कोई भी आ जाए इनटू योर ओन डोमेन, राइट. तो इसमें आपने कैसे जो है वो स्टोर वाइज सेल्स इवैल्यूएशन की हुई है, किस तरीके से आपने यहाँ पे डोनट चार्ट बनाया हुआ है, आपने स्लाइसर्स ऐड किए हुए हैं और आपने कैसे यहाँ पे ये सारे नंबर्स ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं थ्रू द डेटा. आप अगर वहां पे कोई भी अपडेट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सारे डेटा पॉइंट सारे अपडेट हो जाएंगे, राइट. तो इस तरीके से जो है वो ये एक और डैशबोर्ड है जिसमें आपने जो है वो ये सारे यू माइट बी अमेज्ड लेकिन ये सारे माशाल्लाह एक्सेल बेस्ड हमने जो है वो आपको जो है वो यहाँ पे डैशबोर्ड कवर करना है ताकि आप अपने विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक्स है उसको कवर कर सकें और उसको इफेक्टिवली जो है वो अप्लाई कर सकें अपनी डोमेन में. इसके साथ साथ यहाँ पे एक और डैशबोर्ड है जो हमने फर्दर तो ये अगेन यहाँ पे बताने का मकसद क्या है कि ऐसा ना हो कि हम प्योरली आपको आउटलाइन कवर करा देंगे भाई आउटलाइन में देखें ये होगा. हम आउटलाइन से एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और हम आपको जो है वो एक्चुअल जो ट्रेनिंग में कवर कराया जाएगा कंटेंट उसके कुछ प्रीव्यूज भी दे रहे हैं ताकि आपके माइंड को थोड़ा सा और आपको जो है वो एक विजुअली चीज नजर आए कि यू नो दीज आर द थिंग्स दैट विल बी मेकिंग एंड बिल्डिंग द मीनिंगफुल एनालिसिस थ्रू दीज. अच्छा यहाँ पे जो है वो यूजर्स होते हैं, कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जो कि जो है वो एंड यूजर्स होते हैं. मतलब आप में से कुछ ऐसे होंगे जो कि एंड यूजर होंगे लेकिन कुछ ऐसे यूजर होंगे जो कि सारे एडमिन राइट्स रखते हैं. मिसाल के तौर पे आप अगर आईटी के डिपार्टमेंट के हेड हैं तो सारे जो फॉर्मूलाज की कमांड है वो आपके पास होगी. तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि एक है पावर यूजर्स जिनके पास पूरा एक्सेस होता है पूरी डेटा का, एक होता है कैजुअल यूजर. तो उनको भी कैटेगराइज करने से फायदा क्या होता है वो हम इस ट्रेनिंग में कवर करेंगे कि कैजुअल यूजर के क्या रोल्स हैं और पावर यूजर्स के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको फॉलो करनी है. तो मिसाल के तौर पे कंपनी ने अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि ये एमआईएस रिपोर्टिंग आप ही हैंडल करेंगे तो नाउ यू आर द मेन पावर यूजर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिपोर्टिंग. लेकिन आपको अगर कंपनी ने कहा है कि नहीं आपको जो डेटा मिलेगी आपको सिर्फ उसमें फीड करके दे देना है तो अब आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होगा. तो वो डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर योर रोल इज इन द ऑर्गेनाइजेशन आपकी फिर जो है वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसी तरीके से शुरू होगी. ये एक अगेन एक स्लाइड है जिसमें हमने कि भाई हर प्रोफेशनल के लिए क्यों यूजर के लिए ये एक्सेल इंपॉर्टेंट है. मोस्ट इन डिमांड स्किल है अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस सेटिंग्स. चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से हो एक्सेल एक बहुत ही अहम यूज आ जाता है. अब हम करियर पाथ्स को डिस्कस कर लेते हैं. करियर पाथ्स में हमने एक रिपोर्ट निकाली है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज वन ऑफ द ग्लोबल थिंक टैंक्स
जो कि जो है वो न्यू जॉब्स इन 2023 टू 2027 में क्या क्या कैटेगरीज आ रही है उसमें यहाँ पे देखिए डेटा एनालिसिस एंड साइंटिस्ट का एक अच्छा खासा डिमांड आई हुई है। तो ये डेटा एनालिस्ट देखें, आप एचआर में भी डेटा एनालिस्ट हैं, आप अगर सप्लाई चेन में है तो सप्लाई चेन के अगेन डेटा को एनालाइज करने वाला हमेशा करियर पाथ में आगे बढ़ता जाएगा। डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट, तो यहाँ पे जो कैटेगरी इवन डेटा साइंटिस्ट को भी आगे बढ़ने के लिए एक्सेल के स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एक्सेल का यूज आ जाता है बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट। तो yes, excel is not one of the only thing in data science, but it is one of the prerequisites जो आपको आने चाहिए। तो ये ट्रेनिंग आपको उस डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट के करियर की तरफ आपको स्टेप क्लोजर, it will bring it you towards a step closer towards that entire career goal। अगर आपका ये गोल है कि मैं आगे चल के डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ या डेटा एनालिस्ट बड़ी लेवल पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि डेटा एनालिस्ट में भी अगेन पूरी दुनिया में सिर्फ एक एक्सेल ही नहीं है, बहुत सारे डेटा एनालिस्ट के टूल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, बट यस एक्सेल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल्स जो आपको आना चाहिए। तो ये आपको चीज सीखेंगे प्रोफेशनल तरीके से, तो आपको ऑब्वियसली करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब हम यूएक्सेल प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूएक्सेल इज अ फिनटेक ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्टेंसी। हमारा विजन है टू ब्रिज द स्किल्स गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। जैसे कि आपने यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने ऑलरेडी अपना बताया कि मैं ऑलरेडी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। बहुत कुछ पार्टिसिपेंट्स और है जिन्होंने कहा बैंकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, कुछ हैं जो रिटेल मार्केट है, रिटेल बिजनेस से बिलोंग करते हैं। मकसद कहने का ये है कि आप जब इंडस्ट्री में जा रहे हैं वहां पे रिक्वायरमेंट स्किल्स की कुछ और है, और आप जो पढ़ के बैठे हैं ग्रेजुएशन में वहां पे आपने पढ़ा कुछ और है, तो स्किल्स का गैप आ गया। क्योंकि हमारा जो करिकुलम है, जो पढ़ाया जा रहा है हमें एजुकेशन सिस्टम में, वो आउटडेटेड है। अगेन मैं आउटडेटेड कहना मैं इसलिए कि अगेन जो टॉप एलीट यूनिवर्सिटीज होंगी वहां पे कहीं ना कहीं शायद कुछ बेहतरी हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी का तो ऐसा नहीं है। हम ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, लेकिन क्या हम वो ग्रेजुएशन रेलेवेंट टू द मार्केट नीड्स स्किल्स के हिसाब से करते हैं या नहीं करते, ये एक अहम सवाल है। तो यहाँ पे यूएक्सेल उन स्किल्स को फोकस करता है जो कि इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से हो। इसमें एक स्किल एक्सेल का भी ऐसा है जो कि हम यहाँ पे एक्सेल की ट्रेनिंग बहुत सारी होती है, बस थोड़ा वी लुकअप करा दिया, थोड़ा सम करा दिया, थोड़ा बहुत चार्ट वार्ट हो गया और हो गई भाई एक्सेल की ट्रेनिंग आपकी। तो ये वाली एक्सेल की ट्रेनिंग यहाँ पे ऐसे नहीं होती। यहाँ पे आपने जो देखा है इसमें प्रॉपर डिटेल प्रोफेशनल एक वर्किंग होती है, जिसमें आपको एक एक चीज वो दिखाई जाती है जो प्रैक्टिकली आपको काम आए इंडस्ट्री में। वी आर रजिस्टर्ड विद स्टेफ्टा, सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। जैसे पीटीए है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, पैमरा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करती है, राइट। तो इसी तरीके से स्टेफ्टा है जो कि ट्रेनिंग को रेगुलेट करती है, ट्रेनिंग अथॉरिटी को स्टेफ्टा। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग लें, मेक श्योर करें कि वो स्टेफ्टा से रजिस्टर्ड हो, बिकॉज अदरवाइज वो अनरजिस्टर्ड है, वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं हुआ हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये जो प्लेटफॉर्म है यूएक्सेल का, यहाँ से आपको जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो वैलिड मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो कि आप कहीं भी अगर यूएई में बहुत सारे ऐसे किस्से भी हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हुए जिसमें आपने दुबई में जॉब के लिए अप्लाई किया या सऊदी में जॉब के लिए अप्लाई किया, जब सऊदी ने, उस गवर्नमेंट ने या उस कंपनी ने सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराया तो गवर्नमेंट ने बोल दिया ये सर्टिफिकेट इलीगल है, ये वेरीफाइड नहीं है। सच अ ग्रेट एम्बैरेसमेंट कि आपने जिस इदारे से ट्रेनिंग ली उसका सर्टिफिकेट ही इलीगल निकला हुआ था। ठीक है, आपको स्किल आता है वो एक अलग चीज है कि स्किल आना जरूरी है, लेकिन स्किल की रिकॉग्निशन भी तो हो, और वो उस प्लेटफॉर्म से हो जो कि लीगली एक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। आपके अल्हम्दुलिल्लाह यूएक्सेल से जो सर्टिफिकेट्स निकलेंगे वो इंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट निकलेंगे, गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, जो आप क्यूआर कोड से स्कैन करेंगे, क्यूआर कोड से आपका नाम वेबसाइट पे गवर्नमेंट की नजर आएगा। अब इन्होंने ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगा दी है क्यूआर कोड की। इसके साथ साथ वी आर ऑल्सो ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर विद नेफ्टेक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जो है वो ये हम इसलिए बताते हैं कि आपको इस चीज का तसल्ली हो। जैसे अब ये मैंने आपको बताया आपका सर्टिफिकेट ऐसा होगा,
यहाँ पे आपने पूरा नाम वगैरह आपका, यहाँ पे ये जो स्टैंप है, ये जो स्टैंप है ये गवर्नमेंट लगाती है ऑथेंटिकेट, और ये जो इंडोर्समेंट है ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से, यहाँ पे रजिस्ट्रार्स की साइन होती है, और ये क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपका नाम, मोबाइल नंबर और फादर नेम आ जाएगा, तो कोई भी ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर सकता है गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली काउंट करती हैं, और आपको इसमें जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हमारी गवर्नमेंट भी अपडेट है, अब हमारी गवर्नमेंट भी क्यूआर कोड पे चल रही है भाई, देखिए माशा, तो ये अच्छी बात है। देखिए इतना ज्यादा आप आउटडेटेड ना समझे गवर्नमेंट को। Okay, ji. So now comes the profile of myself. As I introduced myself earlier as well, my name is Farhan Shahid Qazi, and I'm the founder and chief visionary officer at UXL. And the vision being on how to bridge the gap between industry and academia. And I'm an ACCA member. I hold BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes, UK. I've lived and worked in London for about 4 to 5 years. And I've also lived and worked in Dubai for about 4 to 5 years. So about a decade I was outside, and फिर उसके बाद 2019 में I came in here and formed this UXL venture, जहाँ पे we are working on how to build the skills of professionals and make them really equipped with the latest modern techniques. और इसके साथ साथ I've got ATT verified certification as well from Association of Talent Development USA, जहाँ पे ट्रेन द ट्रेनर की सर्टिफिकेशन मैंने ली हुई है। और ऑब्वियसली इससे पहले मेरा खुद का काम भी एज अ बिजनेस एनालिस्ट रहा है। सो आई हैव माई सेल्फ वर्कड एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन फॉर्च्यून 500। तो आई माई सेल्फ नो कि इसमें कितना बड़ा स्किल्स का गैप है, मतलब बिजनेस एनालिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में अभी। ये मैं आपको इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने मार्केट में काम किया, और हम हायर करना चाहते थे अच्छे बिजनेस एनालिस्ट को जो कि एक्सेल, पावर बीआई या इस तरीके की टेक्नोलॉजीज पे एक्सेल रखे, लेकिन हम हायर कर ही नहीं पाते थे डिस्पाइट गिविंग गुड सैलरी। डिस्पाइट गिविंग गुड सैलरी वी वर नॉट एबल टू हायर पीपल बिजनेस। तो ये बहुत एक बढ़ती हुई फील्ड है, चाहे इकोनॉमी डाउन हो रही हो या इकोनॉमी के हालात जैसे भी हो, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आगे बढ़ रहा है और इसमें इनकम आगे बढ़ रही है आपकी। और फिर ऑब्वियसली ये तो मैंने आपको जॉब्स का सिनेरियो बताया है, अल्टीमेटली देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन फ्रीलांसिंग एज वेल। एंड दिस आई एम नॉट सेइंग कि यू नो बस एज अ फैंसी वर्ड मैंने बोल दिया कि फ्रीलांसिंग में बहुत ज्यादा, ये एक्चुअली हैं। यू गो एंड सर्च इट आउट, देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटी। हाँ, यू हैव टू रियली अप्रोच, और आपको जो है वो उस अपॉर्चुनिटी पे जो है वो खुद जाके मेहनत करके पहुंचना है। ऐसे घर पे नहीं आ जाएगी कि फ्रीलांसिंग का काम है सर आप करेंगे। आप खुद कितनी मेहनत कर रहे हैं फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, दैट इज द क्वेश्चन। अपॉर्चुनिटीज हैं, और ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से 100% बोल रहा हूं। अच्छा, इसके साथ साथ उजैर रशीद, ही इज एन एक्सपीरियंस्ड बिजनेस एनालिस्ट। जैसे कि उन्होंने पहले भी अपना एक बताया कि ही इज वर्किंग इन सिस्टम्स लिमिटेड विच इज वन ऑफ द माशाल्लाह वन ऑफ द टॉप लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउसेस इन पाकिस्तान, और इनका मेजर काम जो है वो अब्रॉड का ही होता है, और वहां पे ही इज वर्किंग इन द एमएस और एनालिसिस पार्ट। तो वो जो वहां पे अप्लाई कर रहे हैं वही यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं, दैट इज द ब्यूटी। क्योंकि देखें, हमने अपनी विजन को क्या बताया कि हाउ टू लिंक द इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, मतलब क्या आपको वो स्किल्स हो, तो हमें हायर भी वो करना है जो इंडस्ट्री का हो। मैंने अगर प्रोफेसर पीएचडी का रख दिया यहाँ पे, जो कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनकी बहुत ज्यादा कि वो भी पीएचडी, लेकिन वो रिसर्च मतलब थ्योरी साइड पे ज्यादा चांस हो सकता है। ये तो एक्चुअल काम कर रहे हैं ना, दैट्स इट। इनको ये वो बताएंगे जो एक्चुअल डे टू डे मसला आता है, और वो बता के उसको सिखाएंगे भी। इसके साथ साथ these are our different other associations and partnerships, जैसे ये हमारा गवर्नमेंट के साथ MOUs हैं, हमारा कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट के साथ 2022, 2023 और फिर अभी रिसेंटली 2024 में भी एक MOU हुआ, जिसमें भी प्रोवाइड डिफरेंट ट्रेनिंग्स थ्रू गवर्नमेंट ट्रेनिंग पार्टनरशिप्स, नेफ्टेक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। शायद आप में से बहुत सारों ने सुना होगा कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स, तो हम वो भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते। वी आर ऑफिशियली ट्रेनिंग पार्टनर ऑफ नेफ्टेक, which again gives you that confidence कि you know it is going through a proper mechanism। कोई ऐसे ही नहीं मिल जाता गवर्नमेंट का ये काम, they go through a lot of rigorous regime of checks, तो फिर होते हैं, वरना नहीं होते ये काम।
अच्छा, ये हमारे ऑब्वियसली फिजिकल ऑडियंस यहाँ पे ऑलरेडी बैठी हुई है, वो तो यहाँ पे हमारे आईटी लैब्स देख रही हैं और एयर कंडीशन का मजा भी ले रही है थोड़ा बहुत। लेकिन ये है कि जो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस है उन्होंने अभी तक हमारा इंस्टीट्यूट नहीं देखा, तो उनके लिए यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स आपके लिए रखी हैं। ऑब्वियसली अब हमने लेटेस्ट और भी अपडेट्स कर दी हैं यहाँ पे। ये थोड़ी सी पिक्चर और थोड़ी सी ओल्ड है, लेकिन ये कि बहरहाल इवन आप अगर अभी कराची में हैं और अगर ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली आके ये ट्रेनिंग लें, बिकॉज फिजिकल ट्रेनिंग में 1-to-1 एक इंटरेक्शन होता है, उसमें बहुत अच्छा एक रिजल्ट अच्छी आती है। हाँ, मजबूरी है, अगर आप आउटसाइड कराची है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी अवेलेबल है आपके लिए। अच्छा, ये हमारे डिफरेंट कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स हैं। वी डू प्रोवाइड ट्रेनिंग्स टू डिफरेंट मल्टीनेशनल्स एज वेल। तो ये हमारी जो डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं, ये हमारी कॉर्पोरेट क्लाइंटेज है, जिसमें यू कैन सी OneLink, एंग्रो, KPMG, आर्टिस्टिक मिलियनेयर, निबाफ, मीजान बैंक, UBL, KFC और बहुत सारे माशाल्लाह नाम हैं जहां पे हमने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हुई हैं, न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में बट पब्लिक सेक्टर में भी। यहाँ पे जैसे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मैनेजमेंट सिफिम, जहाँ पे SRB सिंध रेवेन्यू बोर्ड, वहां पे भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की हुई है, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, स्टेफ्टा और अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम रिकॉग्नाइज हैं। जैसे कि मैंने बताया, IFA UK से वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय NAFTEC, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, स्टेफ्टा, TTB, बेनजीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उससे भी रिकॉग्नाइज्ड हैं। और ये जो है वो हमारी सारी डिफरेंट, और अभी हमारी रिसेंटली एक रजिस्ट्रेशन हुई है PSAB में, विच इज पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। तो PSAB में भी वी आर फुली रजिस्टर्ड। ये हम एक वैल्यू एडेड सर्विस देते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को। जो भी सेशन होता है उसकी फिर रिकॉर्डिंग होती है और LMS पे अपलोड हो जाती है, विच मीन्स के वी डू अंडरस्टैंड के उसी सेशन में बैठ के हर चीज आप नहीं सीख सकते, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है एब्जॉर्ब करने के लिए। तो आप बाद में जाके आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग का एक्सेस हम आपको 12 मंथ्स के लिए देते हैं, 2 months ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और प्लस 10 months, तो टोटल 12 months का एक्सेस। और इन रिकॉर्डिंग्स को आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर। बिफोर कमिंग टू द स्पेशल ऑफर, जस्ट वांटेड टू क्विकली चेक विद यू ऑल के आपका यहाँ पे, आई डू अंडरस्टैंड संडे को टाइम निकालना और इस तरीके से आ जाना ये बहुत मुश्किल होता है। सो आई रियली डू अप्रिशिएट फर्स्ट ऑफ ऑल माय डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर एंड टेकिंग आउट एक्सक्लूसिवली टाइम फॉर योर लर्निंग। So that is a great achievement and a great effort from you all. I must appreciate it. But according to that, it's also my responsibility to ask with you all कि क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ? जी, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस संडे को इतना, स्पेशली जो हमारे जो मेल पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे शायद मैरिड भी होंगे, तो उनकी जो है वो वाइफ उनको बोल रही होगी कि ये संडे के दिन भी तुम बैठ गए हो, 1-2 दिन मिला था, तो उनकी भी डांटें शायद मिल रही होंगी या उनकी भी बातें हो रही होगी। फिर घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ग्रोसरीज, बट आप तो क्या लेकिन आप जब आए सब चीजें करने के बाद, तो हमारा फर्ज है कि हम आपके टाइम को यूटिलाइज करें और आपको ये लगे कि यार वाकई मैंने टाइम निकाला 1-1.5 घंटा, आई एम एम्पावर्ड, आई एम फीलिंग एलिवेटेड। तो क्या ये है या ये मैं बस मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, चलने दें। अच्छा जी, ऑनलाइन ऑडियंस है या नहीं है? आप तो खाओ, मतलब लगता है टाइम जाया हो गया आपका, ऐसा है जी? हमारी ऑनलाइन ऑडियंस जी, मजा आ गया सर। ओके, न्यू लर्निंग ऐड हो गई प्रोफाइल में, इंफॉर्मेटिव वर्ड टेकिंग, यस दिस इज वेरी, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। नाउ दिस इज अ ग्रेट ऑनर फॉर अस कि आपने जो है वो माशाल्लाह उस चीज को अप्रिशिएट किया, बिकॉज हमने भी इसी तरीके से किया था कि, और हमारा इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव है कि आप जो एक सेशन लेते जाएं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर सॉरी, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। मुझे जी। खाली LMS के बारे में आपसे जानना है। LMS का जो आप कह रहे हैं ये अपडेट हो जाएगा, ये अगर हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो तब अपडेट होगा, विदाउट रजिस्ट्रेशन तो अपडेट नहीं होगी ना? जी जी, आफ्टर रजिस्ट्रेशन अपडेट होता है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू सो मच उस्मान
तो मैं यहाँ पे आपको ये कह रहा था या इन्फॉर्म कर रहा था आपको कि द थिंग इज दैट हमने हर सेशन इस तरीके से प्लान किया हुआ है कि हर सेशन में पूरे 9 मॉड्यूल्स जब कवर हो रहे होंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग पूरी है 2 महीनों की, एवरी संडे क्लास होगी सुबह 11 से 2। तो और ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक संडे को पहला सेशन इंशाल्लाह ताला 11 से 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो आप हर सेशन में एलिवेटेड फील करें, ये हमने डिजाइन किया हुआ है करिकुलम इस तरीके से, इट्स डिजाइन दैट वे कि यू फील एलिवेटेड लाइक यू आर फीलिंग टुडे। हर सेशन में यार वाकई टुडे इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, वाओ आई लर्नड दिस समथिंग न्यू, सो दैट वाओ फैक्टर शुड कम इन। तो वो उसके लिए थिंकिंग अप्लाई होती है कि यार कैसे वाओ फैक्टर आएगा कैंडिडेट का, ये करवा दो तो वाओ फैक्टर जरूर आएगा। इस तरीके से लेकर चलें चीजों को, राइट? बिकॉज ये चीज इट्स नॉट अबाउट जस्ट डिलीवरिंग, इट्स अबाउट पैशन एज वेल। व्हेन यू आर पैशनेट you do more than what you are required to do. That is what really the passion comes in, right? So कुछ मेरे पास मेरे ख्याल से कुछ हाथ रेज हो रहे हैं फर्दर। क्वेश्चंस हम बाद में ले लें। अच्छा, बाद में ले लें या पहले स्पेशल ऑफर हो जाए? जी चले ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। जी हसन। थैंक यू फरहान, इट्स अ नाइस सेशन। मेरा ये क्वेश्चन था कि जो इंटरनेशनल, एक तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस एक्सेल की कोई हैं, जैसे आपने लोकल सर्टिफिकेशंस बताया और गवर्नमेंट की एफिलिएशन बताई, और जी अगर कोई सर्टिफिकेशंस हैं तो ये कोर्स हमारे लिए कितना उसके लिए इफेक्टिव है, ये मुझे थोड़ा सा पूछना था। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने हसन। और ये पॉइंट मुझसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शायद मैं बोलना चाह रहा था लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका बोलने का, और आपने ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे उससे मौका मिल गया। थैंक यू सो मच वंस अगेन हसन। बेसिकली ये जो ट्रेनिंग है इसका सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का मिलेगा, गवर्नमेंट इंडोर्स सर्टिफिकेट। आपको अगर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लेनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो वो आप डायरेक्टली एक्सेल की जो वेबसाइट है वहां पे जाके एग्जाम देके आप एक्सेल की सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट की ले सकते हैं। ये आउटलाइन हमने उसी हिसाब से बनाई है। ये चीज मैंने आपको शायद नहीं बताई थी। ये आउटलाइन इज डिजाइन टू लीड यू टुवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन। हाँ, आपको अगर कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एक्सेल की जिसको यूएक्सएल से मिल सके, तो इस प्रोग्राम में करंटली ऐसी नहीं है कोई सर्टिफिकेशन, हम आपको डायरेक्टली तैयार करवा दें, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का तो वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट ही हो जाता है। तो आप बस, हमारा फर्ज यह है कि आपको उस टेस्ट के लिए तैयार कर दें। तो ये ट्रेनिंग डिजाइंड है टू प्रिपेयर गेट यू माइक्रो सर्टिफिकेशन। बाकी एक गवर्नमेंट इंडोर्स्ड वैलिड सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो हमारी तरफ से एक मिल जाएगा। I hope I have been able to answer. Yeah, thank you. All right, welcome. All right. अब मेरे ख्याल से कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो कह रहे तो हैं, दिमाग में बोल रहे नहीं हैं कि सर अब इतनी सारी बातें होंगी, प्लीज स्पेशल ऑफर कर दें, बहुत जल्दी से मुझे इंतजार हो रहा है। तो स्पेशल ऑफर कर दूं या छोड़ दूं? जी अच्छा, यहाँ पे जो है वो कुछ पार्टिसिपेंट्स, अच्छा चले जी, ओके, ऑल राइट। सो हियर कम्स a special offer for you all, exclusively for you all, because you have especially taken out your time to come here and attend this orientation, and this is a thank you reward from our end. Take admission and upskill yourself with bonus 2 hours extra। जो हम आपको जो आउटलाइन दे रहे हैं उसमें 24 आवर्स की हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन 24 आवर्स के साथ 2 आवर्स एक्स्ट्रा भी देंगे, जिसमें आपको Q&A या कोई होता है ना ट्रेनिंग के बाद का एक थोड़ा सा सेशन रह जाता है कि सर कुछ फाइनल बिट्स रह गए या क्या, मुझे कुछ पॉसिबिलिटी, 2 आवर्स एक्स्ट्रा भी देंगे। और इसके साथ साथ आपको लाइव केस स्टडी बेस्ड लर्निंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे, LMS का लर्निंग का एक्सेस देंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी देंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी इज लाइफ टाइम आपके लिए एक्सेस। इसके साथ साथ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का सर्टिफिकेट भी देंगे, और ये एडमिशन फॉर्म का लिंक है जो कि आपको चैट बॉक्स में शेयर हो जाएगा। सर ये सब चीजें मुझे पता चल गई, जल्दी से स्पेशल ऑफर बता दे, बस जल्दी से, बस आगे बढ़े जल्दी, चले जी आगे बढ़ गए। ओके, सो हियर कम्स द स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑल। This training was originally 8,500 for you and lump sum 16,000, but आज क्योंकि आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए, तो दिस ट्रेनिंग इज जस्ट 7,820 पर मंथ एंड 14,720। बिलीव यू मी, आप अगर किसी भी बड़े इदारे में या किसी भी जगह पे इंटरनेशनली चल जाएं, एक्सेल की इस लेवल पे कस्टमाइज्ड जो आपकी ट्रेनिंग को हेल्प करेगी या क्या,
goes to 40,000, 50,000, 60,000, और वो भी क्या 1 day 2 day workshops. 1 day 2 day workshops are good, अच्छी बात है, लेकिन उसमें रिफ्रेशर अच्छा होता है. यहाँ पे 2 महीने में इट्स अ प्रॉपर जर्नी दैट यू गो थ्रू. एवरी संडे यू कम एंड यू लर्न इन ड्रिप्स. थोड़ा सा नई चीज मिली, फिर एक हफ्ता मिला अप्लाई करने का, फिर अगले संडे को आप आए, तो इट बिकम्स अ जर्नी. हमारा टाइम ज्यादा लगता है उसमें, लेकिन एट द सेम टाइम चाहे हमारा टाइम ज्यादा लग रहा हो या ना लग रहा हो, हम आपको बहरहाल इसमें क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एक्सेल करें. तभी तो इस कंपनी का नाम भी हमने यू एक्सेल रखा हुआ है, where we want you to achieve excellence, right? In whatever best format we can offer you the service, right? So this is a value package that we have created for you all, just because we want you to help and grow. And आपका थैंक यू क्या होगा हमारे लिए? आपका बस थैंक यू ये होगा कि आप स्प्रेड वर्ड कर देंगे, मजीद पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे. दैट विल बी द ओनली थिंग दैट वी वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, कि जस्ट एज अ थैंक यू यू विल बी रेकमेंडिंग अदर्स कि जो है वो सर इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, आप फायदा लें. दैट इज दैट इज. और दूसरा क्या होगा कि आप खुद आके सर को कहें, सर कहेंगे सर वाकई मेरा टाइम सेव हुआ, मैंने जो काम किया उसमें मुझे अब प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है मेरी, और अब जो है वो मैं कॉन्फिडेंट यूजर बन गया हूं एक्सेल का. सो दीज आर द टाइमिंग्स दैट यू मे नोट. सेशंस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम संडे 7 July 2024, 11 AM to 2 PM एवरी संडे क्लासेस होंगी, और 24 आवर्स का ये सेशन है टोटल इन 2 months जो आपको कवर कराए जाएंगे. यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक शेयर करते जाएंगे. जो हमारे फिजिकल ऑडियंस है उनको जो है वो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म शेयर कर देंगे, और जो हमारे ऑनलाइन ऑडियंस है उनको एक लिंक शेयर हो जाएगा अभी थोड़ी देर में चैट बॉक्स में, और आप फिर जो है वो बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू, इजी पैसा जायज कैश के थ्रू ये फीस ट्रांसफर कर सकते हैं. These are our social media platforms: Facebook, Instagram, LinkedIn, and YouTube. Do go there at social media platform and like us and follow us to help spread the word. And once again, thank you so much from the bottom of my heart for taking out your valuable time. And I hope you've had a wonderful time here, which helps you as a beautiful memory for today and in coming times, इंशाल्लाह ताला. एंड एक जो है वो क्विकली रिक्वेस्ट है हमारी सारी ऑनलाइन ऑडियंस को, क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, लेकिन एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी ऑनलाइन ऑडियंस को कि प्लीज अगर अपनी आप कैमरास खोल लें और हम जो है वो आप एक पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें टू मेक इट इनटू अ वंडरफुल मेमोरी. सो लेट्स ओपन आवर कैमरास एंड जो है वो कन्वर्ट दिस इनटू अ ब्यूटीफुल मेमोरी. तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा सारे पार्टिसिपेंट्स को कि काइंडली आप जो है वो अपना जो है वो ये शेयर कर दें, और मैं जो है वो यहाँ पे कर लेता हूँ. वंडरफुल. देखें ये हमारा ऑनलाइन जो है वो सारा चल रहा होता है सेटअप, एंड हमें पता भी नहीं होता. एक हमें पार्टिसिपेंट मिले मुझे, मैं सुपरमार्केट में ग्रोसरीज ले रहा था, तो अचानक मेरे पास एक पार्टिसिपेंट आ गया, सर वो अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपके? मैंने कहा जी वालेकुम सलाम. तो कहते सर मैं आपके वो ऑनलाइन सेशन अटेंड करता हूँ और आपको तो मैं देख रहा हूँ, तो आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा. तो मैंने कहा यार तुम अपनी कैमरा खोल लेते तो मैं तुम्हें देख ही लेता कहीं ना कहीं. तो लेट्स पुट दैट इनटू अ ह्यूमन टच. और मैं अपनी टीम को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अपने स्क्रीनशॉट ले लें. मैं आई रिक्वेस्ट आवर टीम मेंबर टू प्लीज द सारे कैमरास अगर खोल सकते हैं. जी थैंक यू सो मच मंजू भाई एंड उस्मान फारूक. ओके सो सबको रिक्वेस्ट है एक दफा थम्स अप कर लें प्लीज, थम्स अप. और यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं थम्स अप के. दैट्स ग्रेट, थैंक यू थैंक यू. यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया हमने. वंस अगेन थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर मेकिंग दिस ओरिएंटेशन इनटू अ वंडरफुल मेमोरी. एंड लेट्स कंटिन्यू दिस जर्नी towards our next session and make it even more wonderful memories when we welcome you here and provide you an excellent learning experience. Any questions so far? कोई क्वेश्चन है? अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आई एम अवेलेबल, नहीं तो ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारी नोट कर लें आप, और मैं जो है वो आपको जो है वो आई विल बी अवेलेबल ऑन द कॉल एज वेल. ये हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, आप हमें विजिट भी कर सकते हैं, नहीं तो ये नंबर है मेरा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं. एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर यू एंड हेल्प यू, गाइड यू एंड काउंसिल यू ऑन हाउ एक्सेल कैन हेल्प यू build a robust career into your profession. That's great. All right, thank you so much. Any questions? सर ये आपका पर्सनल नंबर है? जी जी ये नंबर मेरा पर्सनल है जी. ओके थैंक यू. सर ये हमें क्या कहते हैं ऑन साइट क्लासेस के लिए लैपटॉप अपना लेकर आना होगा या डू हैव द मशीन्स?
बहुत अच्छा सवाल पूछा। वैसे देखें, इस सवाल का जवाब मैं कहीं ना कहीं आपको दे ही चुका था, क्योंकि मैंने आपको जो है वो वहां पे लैब्स की पिक्चर दिखाई थी जहां पे आपने देखे थे हमारे पास लैपटॉप्स। तो लैपटॉप्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन आप अगर अपना लैपटॉप लेकर आना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। वंडर लैपटॉप्स अवेलेबल है यहाँ पे। थैंक यू। All right. All right. Have a great weekend, and really looking forward to welcome you next week, inshallah ta'ala. Thank you. Thank you. Until then, take care of yourself. Thank you. All right. अब जो है वो एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं। गम थी कल, बस दिन में गम थी, शाम के बाद